Swami Prabhupada Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Save the whole world, Srila Prabhupada ki, Jai Om Vishnupada Brahman Sapatacharya, Swami Kesha Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Maharaj ki, Shri Shri Bharanathai ki, Shri Shri Radha Prabhupada Prabhupada ki, Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki, Iskon Devi Yatra ki, all glory Shri Sri Madhuri, all glory Shri Sri Madhuri. All glory to the Guru. Iskon Kurukshetra Yatra ki. All glory to Shri Guru and Shri Guru. Iskon Ahmedabad Yatra ki. Iskon Pune Yatra ki. All glory to the Guru. God heaven and Abhinav Prabhu, can you share Narsimha Kavach? Shri Shri Narsimha Kavacha Stotram Trailokya Vijaya. Shri Narada Uvacha Indradi Deva Vrindesha Tateshwara Jagatpate Mahavishno Nrasimhasya Kavacham Bruhi Me Prabho Yasya Prapatanad Vidvan Trailokya Vijayi Bhavet Shri Brahmo Vacha Shrunun Narada Vakshyami Putra Shrestha Tapodhana Kavacham Narasimhasya Trailokya Vijayabhidham Yasya Prapatanad Vagmi Trailokya Vijayi Bhavet Srishtaham Jagatam Vatsa Patanadaranadhyatha Lakshmir Jagatrayam Pati Samharta Cha Maheshwarah Patanadaranadeva Babuvuscha Digishwarah Brahma Mantra Mayam Vakshe Bhutadi Vinivarakam Yasya Prasada Durvasastrailokya Vijayi Muni Patanadaranadhyasya Sashta Chakroda Bhairava Trailokya Vijayasyasa Kavachasya Prajapati Rishischandascha Gayatri Nrisimho Devata Vibhu Kshraum Bijam Me Shirappatu Chandravarno Mahamanu Ugram Veeram Mahavishnum Jwalantam Sarvatomukam Nrisimham Bhishanam Badram Mrityor Mrityum Namamyaham Dvatrimshad Aksharo Mantro Mantra Raja Suradrima
कण्ठं पातु ध्रुवं श्रौम्भृत् भगवते चक्षुषी मम नृसिंहाय च ज्वालमालिने पातु मस्तकं दीप्तदंष्ट्राय च तदाग्निनेत्राय च नासिकं सर्वरक्षोघ्नयः सर्वभूतविनाशनाय च सर्वज्वरविनाशाय दाहदाहपचद्वयं रक्ष रक्ष सर्वमन्त्र स्वाहा पातु मुखं मम तरादिरामचन्द्राय नमः पायात् गुडं मम क्लीं पायात् पणियुग्मां च तरं नमः पादं तत नारायणाय पार्श्वं च हं ह्रीं क्रों श्रौं च हुं फट् वरक्षरकटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं वसुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं क्लीं कृष्णाय सदः पातु जानूनी च मनुत्तम क्लीं ग्लौं ग्लीं श्यामलङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं क्षौं नरसिंहाय च क्षौं च सर्वाङ्गं मे सदावतु इति ते कटितं वत्स सर्वमन्त्रोगविग्रहं तव स्नेहान्मयख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुपूजं विदयत गृह्णीयात् कवचं तट सर्वपुण्यायुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत् शतम् अष्टोत्तरं चैव पुरुषश्चार्य विधिस्मृत हवनादिं दशंशेन कृत्वा साधकसत्तम ततस्तु सिद्धकवच पुण्यात्मा मदनोपमां स्पर्धम् उदूय भवने लक्ष्मीर्वाणि वशेत्तत पुष्पाञ्जल्यष्टकं दात्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणां पूजया फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिख्य गुतिकं स्वर्णस्तां धारयेद्यति कण्ठे वा दक्षिणे बाहु नृसिंहो भवेत् स्वयं योषिद्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे विब्रुयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् काकवन्द्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मवन्द्या नष्टपुत्र बहुपुत्रवती भवेत् कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नर त्रैलोक्यं क्षोभयत्येव विजयी भवेत् भूतप्रेतपिशाचश्च राक्षसास्दानवाश्च ये तं दृष्ट्वा प्रापलयन्ते देशादेशतरं ध्रुवं यस्मिन् गेहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तं देशं तु परित्यज्य प्रयन्ति चातिदूरतः। श्री नरसिंह कवच स्तोत्रम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj की जय। करता लेना बंद कर। Hare Krishna. Hare Krishna, Adi Prabhuji. Yes, Prabhu, Hare Krishna, Dandavad. So, Maharaj, quickly, shall we play that video that we were playing before at Narasimha Kavacha from Madhva Sampradaya? And I'll just open that too. It's shared with Abhinav Prabhu. If it's there with Abhinav Prabhu, he will play. Otherwise, I'll have to search for it. I'll just open it. Well, I'll forward you also. Yeah, okay. Prabhu, you can also play it. I forward it to you, Prabhu. Okay, thank you. Hare Krishna, this one, Prabhu? The one that I have forwarded to you, Prabhu. Yes, this is the same video. Yeah, same, Vijayendra Tirtha. Should I start? Please. Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Shri Vijayendrayati Kruta Shri Nrusimhashtakam
वाकण्डं वारणाण्डं परपरविरटं ढम्पढम्पोरुडम्पम् ढिं 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 ढिढिम्बं दहमपि हवमैर्झुम्पझुम्पैश्च झुम्पैः धुल्यास्तुल्यास्तु तुल्यादुमदुमदुमकै खुन्कुमान् कैकुमान्कैः ये तत्ते पूर्णयुक्तम् अहरः करः पातु मां नारसिंहः भूभृद्भुजङ्गं प्रलयरवरवं प्रज्वलज्वालमालम् खर्जर्जं खर्जदुर्जं ककचकचकचित्खर्जदुर्जर्जयन्तम् भूभागं भोगभागं गगगगगगनं गर्दमृत्योग्रगण्डम् स्वच्छं पुच्छं स्वगच्छं स्वजनजननुतः पातु मां नारसिंहः येनाग्रं गर्जमानं लघु लघुमकरो बालचन्द्रार्कदंष्ट्रो हेमाम्बोजं सरोजं जट जट जटिलो जाड्यमानस्तु भीतिः दन्तानां बाधमानं खगट खगटवो भोजजानुः सुरेन्द्रो निष्कृत्यो हंसराजा गह गह गहतः पातु मां नारसिंहः शङ्खं चक्रं च चापं परशुमशमिषं शूलपाशाङ्कुशास्त्रम् बिभ्रन्तं वज्रकेटं हलमुसलगदा कुन्तमत्युग्रदंष्ट्रम् ज्वालाकेशं त्रिनेत्रं ज्वलदनलनिभं हारकेयूरभूषम् वन्दे प्रत्येकरूपं परपदनिवसः पातु मां नारसिंहः पादद्वन्द्वं धरित्रीकटिविपुलतरो मेरुमध्योड्वमूरुम् नाभिब्रह्माण्डसिन्धुहृदयमपि भवो भूतविद्वत्समेतः दुश्चक्रान्कं स्वबाहुं कुलिशनकमुखं चन्द्रसूर्याग्निनेत्रम् वक्त्रं वह्ने सुविद्युत्सुरगणविजयः पातु मां नारसिंहः नासाग्रं पीनगण्डं परबलमतनं बद्धकेयूरहारम् रौद्रं दंष्ट्राकरालम् अमितगुणगणं कोटिसूर्याग्निनेत्रम् गाम्भीर्यं पिङ्गलाक्षं भ्रुकुटितविमुखं षोडशाधार्धबाहुम् वन्दे भीमाट्टहासं त्रिभुवनविजयः पातु मां नारसिंहः खे खे नृसिंहाष्टके नरवरसदृशं देववीत्वं गृहीत्वा देवन्द्यो विप्रदन्दं प्रतिवचनपयायां जनप्रत्यनैषीः शापं चापं खड्गं प्रहसितवदनं चक्रचक्रीचकेन ओमित्येदैत्येनादं प्रकच विविदुषां पातु मां नारसिंहः झुं 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 झुंकारं जुष जुष जुषितं जानुदेशं जुकारम् हुं 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 हुकारं हरितकः हसायन्दिशे बम्बकारम् वं 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 वकारं वदनदलिततं वामपक्षं सुपक्षम् लं 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 लकारं लघुवणविजयः पातु मां नारसिंहः भूतप्रेतपिशाच यक्षगणशद्देशान्तरोच्चाटना घोरव्याधिमहाज्वरं भयहरं शत्रुक्षयं निश्चयम् सन्ध्याकालजपन्तमष्टकमिदं सद्भक्तिपूर्वादिभिः प्रह्लादेव वरोवरस्तु जयिता सत्पूजिताम्बूतये इति श्रीविजयेन्द्रयति कृतम् श्रीनृसिंहाष्टकम्
सम्पूर्णम् हरिः ओम् तत्सत्। Hare Krishna. Hare Krishna. Devti Prabhu. Anadi Prabhu. Yes, Prabhu. What next? Shall we chant 3 or 5 times Ugram Viram Mahavishnu for Maharaj? Quick recovery. Yeah. And up to another we program. last what Chaitanya Mohan Prabhu. Yeah, Chaitanya Prabhu is there. Yeah, whatever Prabhu says, we should do that. In the temple, they'll be starting prayers for Maharaj. Okay, okay. Chaitanya Mohan Prabhu, over to you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Haribol. Yeah, yes, Prabhu, we can hear you, Prabhu. Yeah, Prabhuji, let's start one round of that Ugram Viram, no? Yeah, yes. perfect. Yeah. Venkat Govind Prabhu is here. I think he can lead or somebody else can lead. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Venkat Govind Prabhu, you want to lead Ugram Viram for one round? One round, no? Full, yeah, okay. Yes. Shall we start, Prabhu? Please, Prabhu. Ugram Meram Mahavishnu. Everyone will chant together, Prabhu. They can chant on mute, Prabhu. You please chant on the... Oh, I have to chant alone, right? Yes, Prabhu. Okay. Others can chant on mute. That will be better. Ugram Meram Mahavishnum Janantam Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityu Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Janantam Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Janantam Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Janantam Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Jalantam Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Jalantam Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Jalantam Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Jalantam Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Jalantam Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Jalantam Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Jalantam Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Jalantam Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Jalantam Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Jalantam Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Jalantam Sarvatomukam Narasimham Vishanam Bhadram Ratyor Mrityum Namamyaham. Ugram Meram Mahavishnum Jalantam Sarvatomukam
नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं
नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्
उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण प्रभु। Start the lecture. Abhinav Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु। Prabhu, please start the lecture, Prabhu. Maharaj's lecture. तो लाउड हो सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों को शिक्षा दी भक्ति के विषय में। एक समय रूप और सनातन एक समय रूप और सनातन भारत के सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। उनकी रुचि नहीं थी, पर जबरदस्ती उन्हें राजा की सेवा में जुड़ना पड़ा। पहले रूपा गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी। जब उन्होंने सरकारी नौकरी त्यागी तो उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि एक पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। और उन्होंने आधा बांटा ब्राह्मणों को, 25% बांटा रिश्तेदारों को और 25% रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। थोड़ी देर बाद सनातन गोस्वामी ने भी सरकारी नौकरी त्यागी। सनातन गोस्वामी को नवाब ने जेल में डाल दिया था कि सनातन गोस्वामी ने इनकार कर दिया नौकरी करने के लिए। और फिर जेल से बड़ी कठिनाई से निकले और महाप्रभु जी को मिले वाराणसी में। और फिर आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी को 2 महीने के लिए भक्ति संबंधित शिक्षा दी, जो कि आप चैतन्य चरितामृत में बड़ी गहराई के साथ पढ़ सकते हो। और आगे उन्होंने सनातन गोस्वामी को भी शिक्षा दी। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु ने 6 अवश्य विधियों की चर्चा की, जिसके द्वारा आप परम भगवान के शरणागत हो सकते हो। हम सब भक्ति में जुड़े हैं और हम सबका लक्ष्य होना चाहिए परम भगवान के शरणागत होना। तो परम भगवान के शरणागत होने के लिए क्या भाव होना चाहिए, इस विषय का वर्णन चैतन्य महाप्रभु जी ने किया। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो कार्य त्यागो, और भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उस कार्य को त्यागो। तो को अनुकूल के विषय में हमने सुबह के लेक्चर में कहा था कि ध्यान से जाप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, साधु संगत में रहना, ये सब अनुकूल कार्य माने जाते हैं। जिस प्रकार साधारण जीवन में श्वास के लिए जो अनुकूल है वो भोजन आप स्वीकार करते हो, जो प्रतिकूल है उसे आप त्यागते हो। तो हम सब का लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति।
और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सबको हमारे आध्यात्मिक जिम्मेदारियों पर विचार रखना चाहिए। तो केवल जप करना काफ़ी नहीं है, हमारा प्रयास रहना चाहिए ध्यानपूर्वक जप करना, जिसका संक्षेप में अर्थ यह है कि जब आप जप करना बैठते हो केवल जप कीजिए और कोई कार्य नहीं। ये नहीं कि एक हाथ से जप माला कर रहे हो, दूसरे हाथ से टेलीफोन में बात कर रहे हो और दूसरा कार्य कर रहे हो। और जितने ध्यान से जप करोगे उतनी तेज़ी के साथ चेत दर्पण मार्जनम होगा। हमारे हृदय में बहुत गहरी मैल है और इस मैल के कारण हम भगवान के शरणागत नहीं होते। और अगर इस मैल को दूर करना है तो हमें बड़े ध्यान से जाप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाप करने का एक और लाभ है कि इसके द्वारा आपको असली आनंद प्राप्त होगा। फिर शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्र में भगवान की वाणी। केवल शास्त्रों को घर में रखना काफ़ी नहीं है, पर इनका हमें उपयोग भी करना चाहिए। हमें इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए कि हम कम से कम रोज़ आधा घंटा 1 घंटे के लिए शास्त्रों को पढ़ सकें। और फिर साधु संग। माया का प्रभाव इतना तेज है कि भक्तों की संगत बहुत ही आवश्यक है अगर हम आध्यात्मिक जीवन को बचाना चाहते हैं। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हर इतवार को हम मंदिर जाएं। अगर आप किसी शहर में हो जहाँ की मंदिर नहीं है तो आप भक्ति वृक्ष नामाहर के जो कार्यक्रम हैं उनमें जा सकते हो। और प्रयास रहना चाहिए साधु संघ का लाभ, प्रयास रहना चाहिए कि हमें भक्तों की संगत किसी न किसी माध्यम से प्राप्त हो। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो प्रतिकूल कार्य है उसे त्यागो। तो ध्यान से जाप नहीं करना ये प्रतिकूल कार्य बन जाता है। शास्त्रों को नहीं पढ़ना ये प्रतिकूल बन जाता है। भौतिकवादियों की संगत आवश्यकता से अधिक रखना ये प्रतिकूल बन जाता है। भगवान को भोग लगाए बिना खाएं ये भी प्रतिकूल हो जाता है। भगवान कहते हैं स्पष्ट कि जो भोग लगाए बिना खाए वो केवल पाप खा रहा है। तो हम सबका उद्देश्य होना चाहिए खाएं तो कृष्णा प्रसाद, तो कृष्णा प्रसाद तैयार करना है भगवान की शिक्षा के अनुसार। तो आप जब प्रसाद तैयार कर रहे हो आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि हमने चखना है। आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि भगवान के लिए ये भोजन बनाया जा रहा है। और फिर प्रजल्पा से बचना। रूपा गोस्वामी कहते हैं अत्याहार प्रयश प्रजल्प नियमाग्रह। प्रजल्प का अर्थ है भौतिक चर्चा जिसका कृष्णा से कुछ संबंध नहीं हो। और आजकल सेल फोन के कृपा से प्रजल्पा और भी सरल हो गया है, पर हमें प्रजल्पा से बचना है और भक्तों की संग में रहना है। फिर ये स्वीकार करना कि परम भगवान ही हमारे सुरक्षक हैं। तो परम भगवान हमारे सुरक्षक हैं। और जैसे सुबह के श्लोक में कहा था भगवान जो हैं अत्यंत दयालु हैं अपने भक्तों के प्रति। तो परम भगवान हमारे रक्षक हैं और जितनी मात्रा में आप भगवान की शरण में आओगे उतनी मात्रा में ही भगवान की हमारी सुरक्षा करेंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए सुरक्षा के लिए देवताओं की कृपा की आवश्यकता है। देवता प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि हम परम भगवान के शरणगत हो रहे हैं। तो भक्तों के मन में ये भाव है एकला ईश्वर कृष्ण आर्षभृतया। कृष्ण भगवान ही परम भगवान हैं, बाकी सब जो 33 करोड़ देवता देवियाँ हैं उनके अधीन हैं और उनके सेवक हैं। और भागवतम के 10वें स्कंद में भागवतम के 10वें स्कंद में आप पढ़ते हो कि देवता भी बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान के कृष्ण के शरणगत होते हैं। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा हमें भगवान की इच्छा और आदेश को अपनी इच्छा माननी चाहिए। अक्सर हमारे मन में ये भाव रहता है कि हमारी इच्छा भगवान की इच्छा बने,
तो जो जो चीज़ें कि हमें चाहिए वो चीज़ें भगवान को पूरा करना चाहिए। अगर भगवान पूरा नहीं करें तो किसी कारण हम उस मार्ग धर्म को त्याग देते हैं या किसी और संस्था के साथ जुड़ जाते हैं। पर शास्त्र में कहा गया है क्या कि भगवान की इच्छा को हमारी इच्छा समझना। भगवान की क्या इच्छा है कि हम उनके शरणागत हो जाएं, हम उनकी सेवा में जुड़ें, हम इन दिव्य नामों का उच्चारण करें और हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम भगवान की इच्छा के अनुसार चलें। भगवान की इच्छा क्या है ये कैसे समझेंगे? इसके लिए गुरु, साधु, शास्त्र 3 मार्ग हैं जिनके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने इस विषय में कहा, पहले कदम में हमें किसी प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु के विषय में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदारोपस्थ वेगम, कि मन और इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए। फिर आगे रूप गोस्वामी जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शरण लो, दीक्षा लो। फिर दीक्षा के पश्चात ये पूछो मुझे क्या त्यागना चाहिए भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ भी हो आपको त्यागना पड़ता है। अगर आपको डायबिटीज़ हो जाए तो आपको चीनी और मीठी चीज़ों का शौक़ है, जब भी आपको त्यागना पड़ता है। तो जो त्यागना है उसे त्यागो, पर भगवत प्राप्ति में सफलता जरूर प्राप्त करो। और फिर आगे रूप चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पूछो मुझे क्या त्यागना चाहिए। और रूप गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, जो कीमत भी भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति के मार्ग में सफलता जरूर प्राप्त करो। तो ये होना चाहिए हम सब का भाव। जो भगवान की इच्छा है उसे हम समझते हैं गुरु, साधु, शास्त्र के माध्यम से। शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी। और छठा नियम भगवान के शरणागत होने का ये है विनम्रता। विनम्रता से हमें भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने इस विषय में कहा है, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि साइसना अमानी न मना देना कीर्तनादि सदा हरि, कि अगर आप ये हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो क्या भाव होना चाहिए? विनम्रता का भाव। पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील, पत्ते से भी ज़्यादा पतित। और इस भावना में, इस भाव से आप भगवान के नामों का उच्चारण दिन रात कर सकते हो। ये विनम्रता का भाव इतना आवश्यक है कि कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, ये जो तीसरा श्लोक है शास्त्र का, इसे हमें हमारे गले में सजा लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें सदा ये भाव रखना चाहिए कि अगर हम भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हैं, अगर हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, तो हमें विनम्रता के भाव से भगवान की भक्ति करनी है। तो प्रभुपाद जी ने हमें पूरा ज्ञान दिया है इन ग्रंथों में। हमें इन ग्रंथों को पढ़ना है और आगे किसी को दूसरों को बांटना है। मैं ये कोई 3 हफ्ते पहले एक एटलांटा मंदिर में एक ब्रह्मचारी से बात कर रहा था, एटलांटा अमेरिका में। तो मैंने उससे पूछा आप भक्त कैसे बने? तो कह रहा था एक दिन उसके एक मित्र ने उसको लिफ्ट दी मोटर में। वो मोटर में बैठा था तो पीछे खिड़की में एक भगवद गीता एज इट इज़, ये बच्चों को कोई चुप करेगा? तो खिड़की में भगवद गीता एज इट इज़ की अंग्रेजी में एक कॉपी थी। तो इस भक्त ने उसके मित्र से पूछा, कैन यू लेंड मी दिस बुक? तो मुझे ये किताब उधार में दे सकते हो? तो उनके मित्र ने कहा, हाँ। वाई लैंड? आई गिव इट टू यू, ले लो तुम। तो उनके मित्र ने कहा, मैंने 4 महीने पहले ये किताब खरीदी थी। एक बड़ा मीठा ब्रह्मचारी मॉन्क था, पर मैंने ना खोला है वो किताब को 4 महीने में, ना मेरा खोलने का विचार है, तुम ले लो।
तो इस लड़की ने किताब ले ली, पढ़ना शुरू किया और किसी भक्त को मिलने से पहले सोना माला करना भी शुरू कर दिया। और फिर थोड़ी देर बाद भक्तों को मिला और अब संकीर्तन की जिम्मेदारी उठा रहा है एक प्रसिद्ध मंदिर में। तो इस प्रकार से हजारों उदाहरण हैं कि जिसके द्वारा हम देखते हैं इन ग्रंथों की प्रचार की शक्ति। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम इन ग्रंथों को पढ़ें और बांटें। तो आप सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। शास्त्रों को पढ़ना भी है और शास्त्रों को बांटना भी है। पिछले साल ग्रंथों के मैराथन में आप में कौन कौन जुड़े थे? तो जो जुड़े थे उनका भाव रहना चाहिए कि हम जुड़े रहें। जैसे मैं सुबह कह रहा था भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय क्या है? जो मेरा प्रचार करता है। जो नहीं जुड़े थे उन्हें ये प्रयास करना चाहिए कि ये साल जुड़ें। भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। और जब आप प्रचार करते हो कई स्थानों में आपका स्वागत किया जाएगा, कई स्थानों में आपका विरोध किया जाएगा, कई स्थानों में कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, पर हम सह लेते हैं क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम भगवान की इच्छा को पूरा करें। भगवान ऋषभदेव कहते हैं एक जेंटलमैन अगर किसी अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में चलते हुए देखता है तो इसे पकड़कर सीधे रास्ते में जोड़ देता है। तो आज लोग अज्ञानता में हैं, अज्ञानता के कारण अनेक प्रकार के क्लेश अनुभव कर रहे हैं। पर जो वैष्णव भक्त हैं उनमें दया, असली दया की इच्छा रहती है, इसलिए वो प्रयास करते हैं दूसरों को भक्ति के मार्ग में जोड़ने के लिए। और ये भाव नहीं होता तो आज हम सब इकट्ठे थोड़ी होते। भक्ति सिद्धांत जी ने श्री प्रभुपाद जी को आदेश दिया था 1922 में चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देश में पहुंचाने के लिए। और बूढ़ी आयु में प्रभुपाद जी अमेरिका गए क्योंकि उनके मन में एक ही भाव था, गुरु के आदेश को पूरा करना, चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सत्य बनाना। तो आप सबका सौभाग्य है कि आप एक शुद्ध संस्था के साथ जुड़े हो। आप सबसे ये निवेदन है कि आप इस शिक्षा का लाभ उठाइए। माया का बड़ा तेज प्रभाव है और जब आप भक्ति में जुड़ते भी हो, ये नहीं कि माया आपको विचलित करने का प्रयास नहीं करेगी। माया का सदा यही प्रयास रहता है किसी रूप से आपको विचलित करे। पर अगर हम भक्ति के हथियारों का लाभ उठाएंगे तो फिर हम अपने आप को माया से बचा सकेंगे। तो प्रभुपाद जी ने ये सब बड़े स्पष्ट रूप से समझाया है उनके ग्रंथों में। इन ग्रंथों को पढ़िए और दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में जुड़िए। और भगवान कहते हैं जो श्रद्धा से प्रयास करेगा उसमें कुछ कमी भी होगी तो उसे मैं दूर कर दूंगा। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्णदास कविराज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी की असीम कृपा से कठिन कार्य सरल बन जाता है और सरल कार्य कठिन बन जाता है। और चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है। तो आप सब चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा को अपनाइए, चैतन्य चरितामृत को पढ़िए। अगर चैतन्य चरितामृत को नहीं पढ़ सकते तो टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य एक छोटी किताब है जिसमें प्रभुपाद जी ने पूरे चैतन्य चरितामृत का सार दिया है, इसे पढ़िए। और चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन बहुत ही सरल बना दिया है। उन्होंने कहा पहला आदेश है हरे कृष्ण मंत्र का जाप, इसलिए हम जाप करते हैं क्योंकि ये शास्त्रों का निर्णय है। हरे नाम एवं केवलम कलो नस्ते व गति न था। दूसरा आदेश था गीता भगवत पढ़ो। तीसरा था
भगवान के आर्च विग्रह की उपासना करो। भगवान अपने आप को आर्च विग्रह मूर्ति के रूप में प्रकट करते हैं, उसकी उपासना करो। चौथा था साधु संगत में रहो। और पांचवा था धामवासी बन जाओ कि अपने घर में ऐसा वातावरण स्थापित करो कि हर सदस्य भगवान की सेवा में जुड़ रहे। और अगर आप इन नियमों का पालन करोगे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम सदा मेरे साथ रहोगे और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। आप में से कितने भक्त हो जो सदा भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के साथ रहना चाहते हो? सब। तो महाप्रभु ने बड़ा सरल उपाय दिया है, इसका लाभ उठाओगे? सब उठाएंगे? पर हरे वो यहाँ से हो रहा है, सामने से नहीं। तो आगे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। So, Hare Krishna, I would like to welcome everyone, and as we just heard the lecture from Guru Maharaj, and next we'll have the glorification which will be starting. We just learned that the Maharaj's health is not well, but as I heard from the Shautar Prabhu, that still it is not a very official news. However, certainly Maharaj is not keeping well, so we all just chanted the Narasimha Strota and we prayed for the Maharaj for his early and speedy recovery. So we also checked with Vaishnav Maharaji, and he said that continue the glorification program, whatever is scheduled. So with his blessings and as per his advice, we are continuing this program. इस प्रोग्राम को हम जो है कंटिन्यू आज रख रहे हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है कि वे जप करते रहें और जो ग्लोरिफिकेशन है उसे सुनते रहें, ताकि हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि महाराज जल्द से जल्द रिकवर करें. He should be able to recover faster. So I would like to invite His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj ji, who had sent his recorded glorification. So we'll begin with him the glorification by Param Pujya Bhakti Purushottam Swami Maharaj ji. हरे कृष्णा. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने. Dear Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, please accept my humble obeisances at your lotus feet on this most auspicious appearance day of your holiness. So today is very special day for us, because Krishna, being very merciful upon the conditioned living entities, he sent you from spiritual world. You must be very, very dear to Krishna and very dear to Srila Prabhupada. That you have exhibited by your own behavior and through your activities. So we are very, very fortunate to have your association, Maharaj. Your dedication to Srila Prabhupada is very, very exemplary. The way you are dedicating your kaya, mana, vakya, your body, mind and words towards Krishna and towards spreading the glories of Krishna is very unique. In every respect, you are 24 hours, we can see you are 24 hours engaged in the service of Krishna. Maharaj, you are personification of teachings of Bhagavad Gita. You are so tolerant. Even if you are so elevated, you are so simple and so humble.
your heart is very clean. That can, your face, smiling face, one by seeing your smiling face, simplicity, one can understand. So you get involved with everything, starting from big decision for ISKCON society, and to small things also you get involved, and you reach to each and every devotee, irrespective of is in big position or small position. So whole India fully depend upon you, Maharaj. I have seen wherever there is problem in India, or that is within your zone or not, you are ready to help them. Not only ready, you go sit and sort out the problems. Not only for India, internationally also, for legal purpose, for different purposes. So all our leaders depend upon your holiness. So you are like one of the main pillar of ISKCON, who is holding ISKCON very strongly. So we are very fortunate to be sheltered at your lotus feet, Maharaj. You have developed so many temples. Every year in your zone, one big temple is coming up. I heard somebody told me that Maharaj told that Prabhupada has told Maharaj that you just manage ISKCON. By managing ISKCON, you will go back to Godhead. So I can see that how so so detail, you go so detail for managing ISKCON, and same time, even if you are involved so much with management, same time your devotion life, spiritual life is so elevated. Every day, doesn't matter which part of the world you are, people will see you at the altar. You have your own deity puja, morning walk, then attending all the meetings, getting involved with all the decision makings, and same time personally approaching all the devotees to look after them. I don't think it is possible for any human being to do what you are doing, Maharaj. So on this auspicious appearance day, I offer my humble obeisances unto your lotus feet, and I beg your mercy, beg your forgiveness, knowingly, unknowingly. If feel I have committed any offense unto lotus feet, please excuse me and keep me under the shelter of your lotus feet, Maharaj. Hare Krishna. Haribal Jai Shri Gopal Krishna Goswami Maharaj ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaji. Dandavat to you for this wonderful glorification. As our Guru Maharaj has said in one of his lectures in USA, that our real business is to chant the Hare Krishna mantra attentively and respectively. And the more attentive we are, the greater will be the spiritual advancement that we will be able to make. So with this, I would like to invite His Grace Anukul Keshav Prabhuji, Temple President of Sheshadripuram. I hope Anukul Keshav Prabhuji is there. Hare Krishna. भक्ति आश्रय महाराज का टाइम बताएं. So we'll start with Bhakti Ashram Maharaj is there. Sorry for disturbing रेवती प्रभु. अगर आप पहले महाराज की हेल्थ अपडेट जो ऑफिशियल आई है वो पढ़ दें तो सब डिवोटीज के लिए ठीक रहेगा. चैतन्य प्रभु. Yes, प्रभु जी. Sorry for disturbing. या प्रभु जी. नहीं मैंने बताया दशावतार प्रभु का आया था कि लाइक इट इज नॉट ऑफिशियल,
अभी जो कृष्ण प्रिय प्रभु का हेल्थ टीम का मैसेज है, आई एम श्योर आप सबके पास होगा, नहीं है तो मैं 1 मिनट में रेवती प्रभु को भेज रहा हूँ। यस प्रभु। 1 सेकंड ना, मैं शेयर कर रहा हूँ प्रभु जी। बस ठीक है, फिर अनादि प्रभु कर रहे हैं। ओके, तो अभिनव प्रभु जी को शेयर कर दीजिए। हाँ है, स्क्रीन पे है प्रभु जी। या ना जी। Dear Maharaj, Prabhus, Mataji's disciples and well-wishers of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, I am writing this note to allay any speculation or confusion surrounding the health situation of Guru Maharaja. As on date, Maharaj has been diagnosed as COVID positive. He had fluctuating fever for the last few weeks and it was suspected. Maharaj was struggling a bit with fever for the last 1 month and now it has already come down. In June, Maharaj underwent a comprehensive test and he tested COVID negative. Since the symptoms were almost similar, we had postponed the tests for corona. However, now that he has tested positive, we would like to ensure maximum professional care. Now that the tests have turned out positive, the team of nearly 8 doctors consisting of Maharaj's senior disciples from the US and Delhi has been completely dedicated to monitoring Maharaj's health situation. They have administered some very effective medication because of which Guru Maharaj's fever has now completely reduced and the temperature is now normal as is his breathing. He had some heavy cough which has also now decreased significantly. One night, he is feeling tired though, and so is resting. The team of doctors has now decided that for 3-4 days, it would be a better option to have Maharaj admitted at a leading hospital where he could be cared for better, and our doctors also could have access to the tests, treatment, and progress. We'll also have the option of having devotee bystanders with Guru Maharaj for more personalized care. Over these few days, we'll get more tests done to ensure that Guru Maharaj has no other complications. This way, they will be able to monitor the vital parameters as we may not be able to do so as effectively here from within the temple environment. We need to be cautious to rule out any difficulty, and so Maharaj would be moving to the hospital tomorrow for a few tests. He has asked all disciples to continue with their sadhana with great attention and always keep trying to please Srila Prabhupada in this movement. This is something he asks us all always to do. As of now, Maharaj is in good spirits. He did a bit of deity worship and chanted his Gayatri like normally he does, and as mentioned, was resting well. Now he is chanting. With everyone's prayers, Krishna willing, we may not even have to move Guru Maharaj to hospital for further tests tomorrow. I'll be posting updates frequently on Guru Maharaj's health situation. Kindly do not circulate any unnecessary rumors or sentimental messages on any media. Krishna Priyadas on behalf of the Gopal Krishna Goswami Maharaj Healthcare Team. Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you for reading this message. So, as permitted by Vaishnav Maharaj also that we should continue with the program, and he has just joined. So, I would like to welcome His Holiness Bhakti Ashraya Vaishnav Swami Maharaj Ji. Over to you, Maharaj Ji, for the glorification. Thanks for your advice, and we were really confused कि हम क्या करें आज के दिन में, whether should we go ahead with this program or not. But Maharaj Ji has guided us that for the speedy recovery of the Maharaj Ji, we should do the Narsimha Strotam, and we did that chanting. And after this program also, we'll be doing the Narsimha Strot chanting. Over to you, Maharaj Ji. Yes. Hare Krishna to all of you. Shall I speak in English or Hindi? हिंदी महाराज। हिंदी। महाराज जी डिमांड हिंदी में है। हाँ? हिंदी में बोल रहे हैं महाराज जी। Okay, but you are speaking in English. मैं दोनों बोल रहा हूँ महाराज जी। Okay, आप सभी
भगवत्पाद गुरु महाराज के शिष्यगण को मेरा विशेष प्रणाम है। आपने आज भी महाराज के व्यास पूजा करना चाहते हैं, करते ही हैं, कर रहे हैं। ऐसे तो शास्त्र में कहा गया है, ध्यान स्तुवंस तस्य जस स्त्री संध्याम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। प्रतिदिन 3 बार करना चाहिए गुरुदेव की वंदना और उनके ध्यान, उनके याद 3 बार दिन में मिनिमम करना चाहिए। ये तो अब साल में 1 बार करते हैं संडे देख करके, कभी ऐसा नहीं। ठीक है, ये व्यास पूजा के रूप में करते हैं। महाराज की ग्लोरिफिकेशन व्यास पूजा में तो यही है, उनका करे कैसे भी करे, उनका सबसे बड़ा ग्लोरी यही है हम सभी के लिए कि उन्होंने एक इतने बड़े अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इतने बड़े गुरु दायित्व उठाया कि हम जैसे नालायक प्राणी को गुरु परंपरा के माध्यम से, प्रामाणिक गुरुजनक आचार्यों के माध्यम से कृष्ण के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये जवाबदारी उन्होंने उठाया। जिससे हम कभी कभी सामान भेजते लेटर लिखते ना, और कोई नया आदमी हो तो फिर उनको कोई जानते नहीं तो क्या करते हैं, KRF डालते हैं, किसका KRF में है, और KRF नाम लिखने से अच्छा उनका पास समझ गए। ठीक इसी प्रकार हम लोग तो नालायक है, कोई का नहीं है, तो हमारा KRF में महाराज हैं और प्रभुपाद जी को परसुएट करेंगे तो प्रभुपाद जी फिर आज आगे परंपरा, आचार्य परंपरा से कृष्ण के पास हम लोग का रिकमेंडेशन पहुंचेगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये सबसे बड़ी उत्तरदायित्व उन्होंने दिए हैं, ये बड़ी जोखिम उठाए उन्होंने। और यद्यपि उनके गुरु के प्रति प्रबल डेडिकेशन, बहुत बड़ी श्रद्धा, निष्ठा और ऐसा सेवा भाव रुचि उनका है, तो हम लोग उन्हीं को ही गुण को देख करके हम प्रभावित होना चाहिए और इसी गुण को हम लोग को भी पालन करना चाहिए। आज भी मैसेज में जब महाराज के साथ डिस्कशन किया था, आज सुबह महाराज बता रहे थे कि नहीं किसी को मत बताओ, मेरे पॉजिटिव बात है, कृष्ण डू गो आउट डोंट स्पीक टू एनीवन। लेकिन कैसे छिपा कर रख सकते हैं मैसेज को, आउट हो गया, कई लोग किस प्रकार से करने लगे, तो फिर फाइनली ही बोले कि ठीक है, आपको मैसेज देना है सबको एक मैसेज दीजिए कि संस्था में सब आराम से सेवा में रहे, प्रभुपाद जी की प्रसन्न करे, बस। तो हमेशा ही कहा करते हैं, उनका आपने लिए तो कहेंगे नहीं, तो मेरे मैं ही प्रभुपाद जी के समर्पित हूँ, तो मेरे प्रति मेरे से जो कनेक्टेड हैं सभी प्रभुपाद जी को समर्पित होकर के संस्था में रह करके कृष्ण भक्ति के अभ्यास करते रहे। यही उनका हमेशा ही अभ्यास, यही उपदेश रहा। तो आज भी हम लोग जो एकत्रित हुए हैं महाराज जी को उनके ग्लोरिफिकेशन के लिए, व्यास पूजा के लिए, हम लोग ये संकल्प लेना चाहिए। हमारे देखिए और एक सुयोग है क्योंकि हर समय मिलता नहीं है, तो महाराज के विग्रह के चरण में बैठ करके उनकी यादाश्त करते हैं। एक याद करना चाहिए कि हम लोग जो पहले दिन इसका मूवमेंट में आए और किस प्रकार हम शपथ पाठ किए थे, क्या हमारा मनोभाव था और अभी क्या बन चुके हैं, कितने बदलाव आ चुका है, कोई प्रमोशन या डिग्रेडेशन, तभी इस प्रकार भावना था। भक्तों को देख कर मन में सोच रहे थे ये तो साक्षात देवताओं की तरह है, ये सब वैकुंठशाही है क्या, कितने सम्मान भाव रहता था, कितने सेवा करने के लिए उत्साह रहता था, महाप्रसाद के प्रति, विग्रह के प्रति, कीर्तन के प्रति कैसा हमारा मन था। लेकिन अभी जैसे जिससे हम सीनियर हो गए, सीनियर तो नहीं, मैं तो कहता हूँ सीनियर है, हम तो हो गए हैं, तो हमारा दशा अभी दूसरा बदल चुका है। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमेशा हम अपना ही असली स्थिति को याद रखना चाहिए, और औकात कहाँ क्या है, कैसा है, इसमें हमेशा ध्यान रख करके और बिल्कुल प्रार्थना मूलक स्थिति में
बिल्कुल व्याकुल चित्त होकर के प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण को और भक्तों को, मुझे सहायता करो ताकि मैं भगवान के साथ जो खुले हुए संबंध को, विमुखता को मैं सम्मुखता से कैसे पूर्ण कर पाऊँ, कैसे कर पाऊँ, फिर इस विमुखता को हटा करके मैं कृष्ण की तरफ कैसे मुख कर पाऊँ। इस भावना को, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल व्याकुल भाव से प्रार्थना करना चाहिए, मदद मांगना चाहिए। अगर हमारा ओर से भगवान के वरिष्ठ भक्तगण हमारा ओर से प्रार्थना करेंगे और हम भी भगवान के पास प्रार्थना करेंगे तो भगवान तो बहुत चिंतित है। हम सभी बद्ध जीव के लिए भगवान हमसे ज्यादा चिंतित है कि कैसे मेरे पास वापस आए, लेकिन हम इतने बेवकूफ है, इतने भुलकड़ है, करते नहीं, हमारे इंद्रिय तत्व में लगे रहते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। तो बड़ा हमारा सौभाग्य है कि इस भक्ति संस्था में आकर के और ऐसे शुद्ध भक्तों की जहाँ संगठन है, जहाँ शुद्ध भक्ति का अभ्यास हो रहा है, ऐसे संस्था में आप लोग आके जुड़े हैं और विशेष करके ऐसे एक घनिष्ठ और सेवानिष्ठ और इतने समर्पित आत्मा श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अध्यक्षता में भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को अपने आप से परम गौरवान्वित मैंने करना चाहिए, सोचना चाहिए और उनके जो शिक्षाएं हैं उनको यथासंभव यथाशक्ति सही पालन करने के लिए हम आज फिर और एक बार संकल्प लेंगे। कम से कम अगले साल व्यास पूजा के लिए उसको मेंटेन कर पाएंगे, ये कसम खाना चाहिए। कि महाराज हमेशा कहते हैं कि बाकी सारे समस्या के लिए ये एक ही बात कहते हैं कि you should chant nicely, attempting chanting, ये उनका एक हमेशा प्राय ये बात कहा करते हैं। तो हम लोग हमारे जप के प्रति सावधान सतर्क होना चाहिए और चैंटिंग एंड हियरिंग ये तो मुख्य बात है और श्रवण के प्रति भी जागरूकता बढ़ाना चाहिए। और जितने भी भक्त का संग हो, गुरु महाराज का एक बहुत बड़ा गुण है, कहीं भी जाते हैं, छोटे हो बड़े हो, मंदिर में ही मंदिर संरक्षण में, मंदिर परिवेश में रहना पसंद करते हैं। भले उनका कोई आलीशान कोठी और बहुत बड़े अच्छी व्यवस्था कहीं हो, लेकिन वो चाहेंगे मंदिर में रहने के लिए, क्योंकि वो मंदिर के विग्रह की पूजा करना भी चाहते हैं। तो इसलिए मंदिर के वातावरण में भक्तों के साथ रहना हमेशा उनका ये इच्छा रहता है। तो हम लोग को ये सब गुण सीखना चाहिए कि हम कहीं भी जाते हैं, जहाँ सुविधावादी होकर जहाँ सुविधा मिला वही चला नहीं जाना चाहिए। जहाँ भक्तों के संग मिलेगा, जहाँ भगवान की सानिध्य मिलेगा, जहाँ कथा श्रवण पूजा की सुयोग मिलेगा, वहीं हम लोग को भी रहना चाहिए। और इस प्रकार से भक्ति के आयोजन करने से गुरु महाराज की आदेश को इसी प्रकार से पालन करने से, उनके कृपा के माध्यम से हम प्रभुपाद जी की प्रसन्नता और प्रभुपाद जी की प्रसन्नता से हम पूरे आचार्यों के द्वारा कृष्ण की प्रसन्न कर पाएंगे। और यही शास्त्र के सिद्धांत है। कृष्ण जब भक्त के ऊपर कृपा करते हैं तो कृष्ण डायरेक्ट कभी कृपा करते ही नहीं है, कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव उनके माध्यम गुरु हैं। तो गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे, तो हमेशा भक्तों के ऊपर कृष्ण ही कृपा करते हैं गुरु के रूप से। तो हम लोग का एक कर्तव्य है गुरु को प्रसन्न करे, तो उनके कृपा को प्राप्त करने के लिए, तो उनका कृपा ही कृष्ण कृपा है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद है, सिद्धांत है। तो इसी को प्राप्त करने के लिए हम यथामस्ति हमारा जैसी प्रकार से हम कर सकते, सभी अपना अपना कैपेसिटी सबको पता है व्यक्तिगत रूप से, यथाशक्ति यथामति हम प्रयास करना चाहिए। उनके उपदेश के अनुसार, आदेश के अनुसार सेवा में लगे रहें और उनको प्रसन्न करें। उनकी प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है और जिससे हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो अभी आप लोग भी कोई घबराना नहीं है। ये स्थिति जो मैसेज आया, महाराज की तबीयत बिगड़ा है थोड़ा ये, क्योंकि अभी सीजन ऐसे चल रहा है कि सीजन चेंज हो रहा है, बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, प्राय लोगों को सर्दी खांसी जुकाम हो ही रहा है। तो जिसको थोड़ा खांसी जुकाम सर्दी हुआ वो हमारे क्या टेस्ट कराते हैं वो पॉजिटिव ही आता है। हमारा वृंदावन में अभी टेस्ट हुआ था, लगभग 40-50 भक्त ब्रह्मचारी पॉजिटिव आ गया,
लेकिन इसको लेकर गए, किसी का कोई सिम्टम्स नहीं, थोड़ा बहुत बुखार ऐसे होता ही है सबको, वायरल पर थोड़ा होकर के पास 15-20 दिन आइसोलेशन क्वारंटाइन में रहे, ठीक ठाक होकर आ गए। तो ऐसे ही यद्यपि मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वायरस का वातावरण है सब जगह में, और ये सीजन चेंज का समय में वायरल के रूप में आता है, तो हम लोग को थोड़ा सभी को सतर्क रहना चाहिए। तो महाराज को कोई बोल नहीं सकते, जब वृंदावन आना चाहते थे तो मना किया गया था, लेकिन महाराज आए, 1 हफ्ता इधर रहे, तभी भी खांसी जुकाम था उनको, महीना दिन से तो उनको खांसी जुकाम है ही। तो अभी जन्माष्टमी के अवसर पर ज़्यादा थोड़ा उन्होंने किए तो थोड़ा आया है। तो ऐसे तो हमेशा होता रहता है, तो इसलिए कोई ज़्यादा पैनिक की बात नहीं है, लेकिन हम लोग का प्रयास हम कंटिन्यू रखना चाहिए। इसमें से कोई हम ढीला नहीं देना चाहिए। हमेशा केवल आज ही व्यास पूजा कर रहे हैं, आज मिल करके थोड़ा प्रार्थना करने, ऐसा नहीं, प्रतिदिन हम स्मरण करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा, वो हमारे कियारफ है, उनके द्वारा हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए हमारा हमेशा स्मरण और उनका उनके लिए ध्यान हमेशा करते रहना चाहिए, प्रतिदिन करते रहना चाहिए। तो आज आप लोग सभी बैंगलोर के डिवोटीगण जो इकट्ठा होकर के महाराज के गुणगान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, मैं सभी के चरण में पुनर्बार प्रणाम करता हूं कि आप लोग मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, तो हमारा भी इच्छा है इस प्रकार बना रहें, ताकि मैं भी महाराज के लिए इस प्रकार समर्पित होकर के, आप जैसे उत्साहित थे, मेरा अंदर भी ऐसे उत्साह आ जाए, ताकि महाराज के प्रति मैं ऐसी सेवा के भाव गुणगान कर सकूं। तो आप लोग बड़े उत्साही है, रेवती लीला को बिल्कुल रेडी रहते हैं हमेशा। पता नहीं अभी उन्होंने मंगाए थे वृंदावन से बीबीटी का नंबर, कहीं बुक वितरण वगैरह करते होंगे क्या पता नहीं, करते होंगे। अभी भद्र पूर्णिमा आ रहा है, भागवत सेठ शायद देंगे, किसको पता नहीं। और जो भी हो, जिसे प्रभुपाद जी के बुक डिस्कशन बहुत प्रिय था, गुरु महाराज को बुक डिस्कशन ऐसे प्रिय है, तो इसलिए उनका क्षेत्र में बुक डिस्कशन हमेशा चलता रहता है। जो भी हो, जो भी प्रभुपाद जी की प्रिय है, गुरु महाराज को ही प्रिय है। तो इस प्रकार उनके प्रिय की सेवा में हम लोग को यथाशक्ति जुड़े रहना प्रयास करना चाहिए। और आप जैसे आज एकत्रित हुए हैं, जब जब समय मिले ऐसे इकट्ठा होकर के आपस में महाराज के गुणगान करना चाहिए, प्रभुपाद जी के गुणगान करना चाहिए, और कृष्ण की कथा आपस में चर्चा करना चाहिए। केवल साल में एक बार नहीं, जब भी आपको समय मिले करना चाहिए। मैं तो ही आप सबके पास अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करूँगा, आज मच आज पॉसिबल श्री गौरव प्रभु वगैरह और श्याम बल्लभ माता जी को विशेष करके मैं ही अनुरोध करूँगा कि जब जब समय मिले, सुयोग मिले, इस प्रकार के फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। अपने कम से कम गुरु भाइयों के एक यूनिट रहना चाहिए। केवल गुरु महाराज की सेंटर बना करके कृष्ण कथा करना चाहिए, प्रभुपाद जी डिस्कशन होना भी चाहिए, और हमारा कैसी भक्ति जीवन में हम प्रगति करें उसके बारे में थोड़ा आलोचना करना चाहिए, आपस में डिस्कशन करना चाहिए। कई वरिष्ठ भक्तों को बुला करके उनसे सलाह लेना चाहिए। ये सब भक्ति बद्ध कार्य जितने करेंगे इतने हमारे लिए भलाई है। बाकी दुनियादारी के रोटी कपड़ा मकान के लिए तो पूरा लगा रहते हैं, लेकिन कभी कभी समय निकाल करके इस आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ भी प्रयास करना चाहिए। अंततः ही हमारा साथ देगा, बाकी कुछ साथ होने वाला है ही नहीं। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप इतने दिन बीत जाने के बाद भी, यद्यपि महीना बीत चुका तब फिर भी आप लोग कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। और मैं सभी उपस्थित गुरु भ्राताओं, गुरु बहन को दोबारा प्रणाम करता हूँ, सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ, विचार करता हूँ, ताकि आप लोग के आशीर्वाद से मेरा भी भक्ति जीवन बने रहे। हरे कृष्ण। जय श्री भगवत्पाद महाराज की जय। प्रभु जी आए हुए हैं। जय। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके इस आशीर्वचन और इस ग्लोरिफिकेशन के लिए। थोड़ा हम लोगों को अभी ढाढ़स आया है, थोड़ा हमारी हिम्मत अभी बढ़ी है, अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा डाउन हो गए थे, बट सर्टेनली आपने हमें प्रोत्साहित किया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु महाराज जी। सो गुरु महाराज जी अपने एक मॉन्ट्रियल के लेक्चर में, जैसे महाराज जी ने अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, तो महाराज जी कहते हैं कि book distribution comes from purity. When you go out to preach and you are meditating, here I am, an agent of the Lord and my spiritual master. And one is internally praying to the Lord and spiritual master and Prabhupada. Then Krishna will make him an instrument. So with this we'll move forward. Our next glorification will be done by His Grace Madhusudan Prabhuji. Madhusudan Prabhuji is there? अनुकूल प्रभु जी आए हैं। अनुकूल जी अच्छा, अनुकूल प्रभु जी। अच्छा, इस ज्वाइन। ओके, सो आई एम सॉरी, मैं अनुरोध करूंगा अनुकूल प्रभु जी से कि जो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं हमारे शेषाद्रिपुरम मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, और प्रभु जी से मैं आग्रह गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करें। Can you hear me, प्रभु? Yes, प्रभु, we can hear you. Hello. नहीं, मधुसूदन प्रभु। Can you hear me, please? मधुसूदन प्रभु। अनुकूल प्रभु जी लाइन में पहले अनुकूल जी कर। या अनुकूल प्रभु जी को पहले करनी। You will be after अनुकूल प्रभु। अनुकूल केशव प्रभु जी के बाद में आपका होगा प्रभु जी। Just 2 मिनट दे दीजिए। Yeah. Okay. Yeah. Over to अनुकूल केशव प्रभु। प्रभु जी, मेरा निवेदन है कि आप इसको जितना हिंदी में रखेंगे, क्योंकि काफी भक्त जो बाकी जगहों से जुड़े हैं ना, वो भी सुनना चाहते हैं और उनको अंग्रेजी समझने में तकलीफ है, तो अगर हिंदी में हो सके। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। चेतन मोहन प्रभु शायद अनुकूल प्रभु जी ने ज्वाइन नहीं किया है क्या? हरे कृष्णा। अनुकूल केशव प्रभु है क्या लाइन? हाँ, वो ज्वाइन हुए थे। अनुकूल केशव प्रभु जी। तक मधुसूदन प्रभु जी कर लेंगे। या सो आई थिंक प्रभु नहीं कनेक्ट हो रहा है। मधुसूदन प्रभु, प्रभु जी, यू कैन कंटिन्यू। मधुसूदन प्रभु जी। हरे कृष्णा। मधुसूदन प्रभु जी। प्रभु जी, आप सुन रहे हैं? यस प्रभु जी। मधुसूदन प्रभु जी, आप ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं प्रभु जी। ओवर टू यू। हेलो। यस मधुसूदन प्रभु जी, यू कैन स्पीक। मधुसूदन प्रभु जी। प्रभु, can't hear you though. प्रभु जी, आप बोल सकते हैं प्रभु जी, यू कैन स्पीक। इट्स कैमरा इज विथ यू। आई थिंक मधुसूदन प्रभु जी का नेटवर्क प्रॉब्लम है। नरहरि चेतन प्रभु है क्या? यस प्रभु जी। नरहरि चेतन प्रभु है क्या? नहीं, वो अभी नहीं है। आई थिंक ही विल कम एट 6:20 प्रभु जी। सो विल मूव फॉरवर्ड। हरे कृष्णा। तो विभव कृष्णा प्रभु जी हैं। ओके, आई थिंक नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा आनंदी जगन्नाथ प्रभु जी से। आनंदी जगन्नाथ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी।
Dandavat. I just spoke to Madhusudan Prabhu. He can speak out. I think he's. So now his net is working now? Yes, he was saying that. So he was just talking to me. So just give a minute, Prabhu, please. Or if you say, then I can. Yes, Prabhu. I think हाँ. He is there. सुदन प्रभु जी आप सुन पा प्रभु रहे हैं? इंग्लिश और हिंदी? हिंदी प्रभु जी, आई थिंक मेजॉरिटी हिंदी है, सबका यही है कि हिंदी में। इंग्लिश और हिंदी? हिंदी प्रभु जी। सॉरी? हिंदी प्रभु जी। Yeah, Prabhuji, can I go ahead? Yes, Prabhuji, please, over to you. Yeah, okay. I've switched off my video because otherwise the signal is not very clear. So, would you like me to speak in English or in Hindi? हिंदी प्रभु जी, लोग कह रहे हैं हिंदी में। Okay, हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा है। Then, तो मैं His Holiness गोपाल कृष्ण महाराज से पहली बार 90s में हम पहले उनका क्लास सुने थे इस्कॉन में, और उसके बाद जब हम नया मंदिर अभी अलग से हम प्रोग्राम करने लगे, तब उनसे बैंगलोर आए, मैं उनको कार में मैं ड्राइव कर रहा था एंड हम किसी भक्त के घर गए थे ब्रेकफास्ट के लिए, और मुझे ये महसूस हुआ कि महाराज बड़े सरल हैं, उनमें ये अहंकार नहीं है कि मैं बहुत सालों का इतना सीनियर भक्त हूँ, मैं गुरु हूँ, जीबीसी हूँ, और उनका जो इंटरेक्शन मेरे साथ था बहुत सरल सा था, जैसे मित्रों की तरह, ऐसे ही बहुत नॉर्मल और नेचुरल बात कर रहे थे। और उनका तब एक ऑपरेशन हुआ था तो डाइट पर थे, तो मुझे अभी भी याद है हम एक भक्त के गए थे, इडली खाया था, हम साथ में बैठ के वहां पर इडली खाया, और बहुत सरल सा उनका बर्ताव रहा, जो बहुत बहुत अच्छा लगा कि वो जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है, कुछ छल कपट ऐसे कुछ नहीं है, एकदम सरल और ट्रांसपेरेंट है, वो बहुत अच्छा लगा। और उनके क्लास में मुझे अभी भी एक बात याद है जो उन्होंने बोला था, क्लास उन्होंने एकदम समय पर एंड किया, आई थिंक अराउंड 8:45-9 के अंदर एंड किया, और बोला कि पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। तो उन्होंने ये कहावत बताई कि जल्दी सोना चाहिए, जल्दी जागना चाहिए, और जल्दी सोने से और जल्दी जागने से व्यक्ति को अच्छी हेल्थ, आरोग्य अच्छा रहता है, हेल्थी, और धनवान भी होता है, वेल्थी, और ज्ञानी भी होता है। तो उन्होंने ये पंक्ति से अपना लेक्चर जल्दी बंद किया और कहा कि अब जल्दी घर जाइए। और उसके बाद अभी पिछले साल में उनसे बंबई में मिला, जुहू में मंदिर में, और वहां पर भी उनका बर्ताव वैसे का वैसे ही है, बहुत सरल और बहुत प्रेम और प्यार से बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो उनके जन्म दिवस पर हम उनका आशीर्वाद मांगते हैं, और उनके शिष्यों का भी आशीर्वाद मांगते हैं, और उनका सत्संग मांगते हैं उनके शिष्यों का, और हम सब साथ में प्रभुपाद की सेवा में लगे रहें। हिज होलीनेस श्री गोपाल कृष्ण महाराज स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन प्रभु जी आपका, महाराज जी के साथ जो आपके पल आपने बिताए उसे शेयर करने के लिए। और तो हम आगे बढ़ते हैं, और मैं अनुरोध करूंगा हिज ग्रेस आनंदी जगन्नाथ प्रभु जी से कि वे अपना ग्लोरिफिकेशन करें, और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा राधापति गोपीनाथ प्रभु जी से, बाद में उनका ग्लोरिफिकेशन होगा। सो ओवर टू यू आनंदी जगन्नाथ प्रभु जी। Excellent. Thank you, Chaitanya Mahaprabhu. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Gopal Krishna Goswami iti namini. I'll speak in English and Hindi combination, Prabhu. There are some of them also need English, I thought. Yes, Prabhu. So, Maharaj, when we see Maharaj, we get it's a high honor and privilege that I'm able to glorify Maharaj on the Smriti Puja festival of Maharaj. It's Maharaj has been a source of inspiration
लाइक भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने बोला कि महाराज इंडिया में इस्कॉन के फेस हैं। तो यू सी एनीवेयर महाराज जहाँ पे भी, इवन द मीटिंग्स रात के 11-12 बजे तक चले, पर सुबह यू सी हिम ऑन द ऑल्टर। मीन्स इवन फॉर न्यू पीपल it is very difficult to have that level of enthusiasm, उतनी उत्साह भक्तों में पाना बहुत मुश्किल होता है। पर महाराज यानी एकदम यानी nowhere on the material level, is on the spiritual high, taking us along, हमको आगे लेते हुए चलते हैं। And in spite of his elevated position, every time he is compassionate, सब समय करुणा में रहते हैं, और and he tries कि सबको किस टाइम थोड़ा सा दे पाए। It's like he may not know. मैं एक बार अटलांटा में था, पानीहाटी, न्यू पानीहाटी धाम में, शायद हमें कोई पहचानता भी ना हो वहाँ पे। हम लोग पानीहाटी फेस्टिवल के लिए गए थे और महाराज थे पानीहाटी से थोड़ा आगे फेस्टिवल में, और एक भक्त भी थे। वो भक्त तब मिनियापोलिस में रहते थे, तो उन्होंने महाराज को बोला कि हम बैंगलोर जा रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वो बैंगलोर आ रहे हैं, पर महाराज से वो बात कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, मैं बैंगलोर से था। एंड महाराज इमीडिएटली सेड, "Oh, you're going to Bangalore? Okay, when you go there, associate with the temple." जब आप वहां जाएं तो मंदिर से जड़ित रहिएगा, और we have a temple there. अगर कोई डिफिकल्टी है, then write to me. I was like, those devotees were not even initiated, nothing. And Maharaj was so compassionate, so kind कि जहाँ पे भी हैं किस तरह से वो लोग मंदिर के साथ जड़ित हो सकते हैं। महाराज always tries this, and in spite of old age, Maharaj का यानी the other thing which inspires me a lot, Navadvip Mandal Parikram. It's like so old age materially, but Maharaj is always there to lead for Navadvip Mandal Parikram, and he's just there to give Gaur Katha. And जैसे महाराज अपने व्यास पूजा कथा जो हम देख रहे थे, महाराज ने बोला सनातन और रूप अपने हाई प्रोफाइल जॉब छोड़ के महाप्रभु के सेवक बन गए। महाराज उससे डिफरेंट नहीं है। महाराज ने अपने हाई प्रोफाइल पेप्सिको का जॉब छोड़ के प्रभुपाद के सेवक बन गए। एंड ही ऑल्सो लाइक चैतन्य, लाइक सनातन एंड रूप मीन्स they made Chaitanya Mahaprabhu totally known to the world. Similarly, Maharaj is someone who has also glorified Prabhupada to the world, जहाँ पे भी जाते हैं। So I think आज इस glorious occasion पे मैं महाराज को प्रे करना चाहूँगा कि वो हम पे मर्सी रखें, कि हम लोग महाराज का मूड ले सकें साधना में। महाराज का मैसेज भी हम देखें कि साधना हमारी ठीक हो, हम कोऑपरेटिवली प्रभुपाद के मिशन को और महाराज के चरण पद में सेवा कर पाए, और महाराज के जैसा शायद 1% उत्साह महाराज जैसा हमारा हो तो जीवन सुधर जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज के शिष्यों को जिन्होंने आज का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। महाराज के हेल्थ के लिए अभी शेषाद्रिपुरम में हम लोग लक्ष्मी नरसिम्हा को तुलसी अर्चना कर रहे हैं। Only prayers and chanting will help, so we will continue to do that, and we'll pray for Maharaj's mercy. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, and thanks for organizing the prayers. Yes, prayers helps, and yes, हम लोग महाराज जी के जल्दी स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रेयर करेंगे। इस प्रोग्राम के बाद में भी हम लोग आज जो है चैंटिंग करने वाले हैं। So मैं आगे अनुरोध करूंगा हिज ग्रेस राधापति गोपीनाथ प्रभु जी से कि वे महाराज का गुणगान करें, और इसके बाद में हरि क्षेत्र प्रभु जी आईडीसी के जो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, अनुरोध करूंगा कि वे राधापति प्रभु के बाद में महाराज का गुणगान करें। सो ओवर टू यू राधापति गोपीनाथ प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य प्रभु।
क्या आप मुझे ओके यू कैन सी मी नाउ। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सो अलग उत्साह था जिस समय मतलब पता चला था कि अब हम अपने बेंगलोर में इस तरह से व्यास पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बहुत स्वाभाविक है कि ये समाचार आने के बाद में थोड़ा सा समय लगता है इक्विलिब्रियम को गेन करने में वापस। निश्चित रूप से भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज के वचनों से आश्वासन मिला है और इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि पहले महाराज का जो भी सानिध्य और कृपा मुझे प्राप्त हुई वो मैं आप सबके साथ बांट सकूं और अंत में हम थोड़ा सा महाराज के हेल्थ के विषय में भी आगे कैसे हम क्या कर सकते हैं तो उस विषय में हम 1 मिनट के लिए चर्चा कर सकते हैं। मुझ पर परम पूजनीय और परम आदरणीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की सदैव से विशेष अनुकंपा रही। मुझे हमेशा ये कहते हुए फक्र है और आगे भी रहेगा कि मैं ईस्ट ऑफ कैलाश से निकला। मेरा आध्यात्मिक जीवन वहीं से प्रारंभ हुआ। मुझे और मेरे परिवार को महाराज के शिष्यों ने इतना अधिक प्रेम दिया कि हम आज भी ईस्ट ऑफ कैलाश को मिस करते हैं। वहाँ जैसी मॉर्निंग प्रोग्राम, वहाँ जैसी पक्की साधना, प्रचार का मूड अन्य मंदिरों में नहीं देखा जाता है। और महाराज ने अपनी शक्ति डाली हुई है, अपने आप को महाराज ने दिया है इन मंदिरों में इतना अधिक कि वहाँ पर आने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से पार्थसारथी की तरफ खींचता है। चाहे आश्रय कार्यक्रम हो, चाहे भक्ति वृक्ष कार्यक्रम हो, महाराज की जो दीर्घ सोच रही, महाराज ने सदैव संस्था व्यापक सोचा। उन्होंने कभी भी जोन व्यापक नहीं सोचा। बहुत ही ये सुंदर दृश्य है। सारी संस्था के सारे ही आचार्य इसमें एक साथ हमें दिखाई दे रहे हैं इस समय। तो मैं ऋणी हूँ क्योंकि मेरी माता जी, मेरी ताई जी, मेरे ताऊ जी, मेरे सिस्टर, कजिन ब्रदर, उनकी वाइफ, उन सब को महाराज ने अपने चरणों में शरण दी है। उन सब की आध्यात्मिक जीवन की उन्नति का भार महाराज के ऊपर है। सो महाराज की जो विशालता है हृदय की, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। कभी भी किसी भी भक्त को ये नहीं कहा गया है कि आप यहाँ से निकल जाओ। कोई बीमार है, 2-2 दशकों से बीमार है अगर, तो भी मंदिर में रखा जाता है और उसका ध्यान रखा जाता है। कभी किसी को ये सोच भी नहीं आती है कि यहाँ रहने पर मेरा आना जाना होगा या नहीं होगा। इतना खुलापन महाराज प्रदान करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा, क्योंकि कई भक्त हैं जो अक्सर महाराज के गुणों के विषय में चर्चा करते हैं, लेकिन कभी कभी महाराज का व्यक्तित्व कितना विशाल है उसके विषय में अगर हम चर्चा करें तो हमें और अधिक आनंद आएगा। इसलिए मैं 2 महाराज की लीलाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और फिर मैं अपनी इस खंड को समाप्त करूंगा। तो एक बार की बात है कि मैं किसी को प्रचार करके और दोपहर में घर को जा रहा था तो अचानक मुझे विचार आया कि 4 बजे हैं, दर्शन करके चलते हैं। पार्थसारथी के दर्शन के लिए शाम को 4 बजे जब मैं गया तो परिक्रमा मार्ग में महाराज पीछे वाले रूम से आते हुए दिखाई दिए। तो महाराज को देखने मात्र से वो एक उत्साह आ जाता है। सो प्रणाम करके जब खड़ा हुआ तो महाराज का वही
टिपिकल स्टाइल जिसमें वो कंधे पर हाथ रख के थोड़ी सी गर्दन को टेढ़ी करके पूछते हैं कि कैसे हो, देन ही सेज ठीक हो ना। तो ऐसे करके महाराज, ये बहुत पुरानी बात है, ये शायद 2010 या 11 की बात है। और फिर महाराज आए और प्रभुपाद के पास में नीचे बैठकर और गायत्री करने लगे। तो उस समय मैंने जब पहली परिक्रमा करी तो मुझे ऐसा मन में विचार आया कि जाकर महाराज को माल्यार्पण करो। तो मैंने ये सोचा कि ये मानसिक मेरा वो है, ये स्पेक्यूलेशन है, इसलिए मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मैं दूसरी परिक्रमा करने लगा तो वही विचार और अधिक तेजी से आया। तो मैंने उसको बुद्धि के माध्यम से थोड़ा रैशनलाइज करना चाहा कि ये ठीक नहीं लगेगा, मैं कौन हूँ, छोटा सा नया भक्त हूँ, मुझे कोई जानता भी नहीं है, इसे चमचागिरी की तरह भी देखा जा सकता है। इस तरह से उथल पुथल चल रही थी। तीसरी बार जब मैं परिक्रमा कर रहा था तो वही विचार बहुत अधिक शक्ति के साथ आया कि तुम जाओ और उनको माल्यार्पण करो। तो मुझे झुंझलाहट सी हुई अपने ही मन और बुद्धि के बीच के इस वार्तालाप से। और फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये हो सकता है कि बुरा लगे। इस तरह अपने ही आप से बात करते करते मैं गौरनिताई के ऑल्टर के सामने आया और मैंने क्योंकि नए भक्त को पुजारी भी माला नहीं देते हैं आसानी से, तो जिस समय मैंने पुजारी को कहा कि मुझे माला चाहिए महाराज को पहनाने के लिए, तो वो बहुत अधिक गौर से मुझे देखने लगा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है। तो मैंने पूछ लिया, तो वो मुझसे आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि तुम कैसे जानते हो कि मैं ये माला इतनी देर से महाराज तक पहुंचाना चाहता था और कोई दिख नहीं रहा था। तो मैं सोचने लग गया कि महाराज का व्यक्तित्व कितना विशेष है। गौरनिताई जो दिल्ली मंदिर के हैं वो महाराज को कितना अधिक प्रेम करते हैं कि हम जैसों को साधन बनाया जाता है, लेकिन महाराज का ये इतना उच्च व्यक्तित्व है। एक हमारी संस्था के आचार्य थे, तो राधा कुंड पे एक बार जब महाराज और वो गोपाल कृष्ण महाराज और वो आचार्य जब एक दूसरे से मिलने लगे, तो महाराज को दूर से देखकर वो दौड़ते हुए महाराज की तरफ आए और फिर उन्होंने अपने शिष्यों की तरफ देखकर ये कहा कि तुम्हें अगर ये पता लग जाए कि गोपाल कृष्ण महाराज कौन हैं तो तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। You will faint if you know what is his spiritual identity. इतना महाराज का व्यक्तित्व जो है वो विशाल है, कुछ पकड़ में नहीं आ सकता है। कंटिन्यूअसली निरंतर सेवा जो है, ये जिसे कहते हैं ना कि अहेतु की अप्रतिहता, ये निश्चित रूप से अप्रतिहता है और अहेतु की है। तो महाराज तो उस धरातल पर स्थित हैं और उनके गुणों पर हम जितना ध्यान टिकाएं उतना हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। और सभी आप गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्यों से मेरा निवेदन है कि महाराज के लिए आप जो भी नियमित जप का कार्यक्रम शुरू करें, कृपया मुझे भी बताएं ताकि मैं भी उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय और प्रेमानंद। बहुत बहुत धन्यवाद राधापति प्रभु जी। और जरूर हम आपको हर इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि आप हमारे मार्गदर्शक भी हैं बैंगलोर टीम के लिए। हमने ऐसा सोचा है कि हम रेगुलर आज के बाद से इवनिंग में एक टाइम डिसाइड करके हम चैंटिंग करेंगे उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए, जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो आपको अवश्य हम उसमें सम्मिलित करेंगे और आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ में मैं इनवाइट करूंगा हरि क्षेत्र प्रभु जी को। हरि क्षेत्र प्रभु जी, प्रभु जी हैं? हरे कृष्ण में हूँ। Yes, प्रभु जी। So thanks for coming. I would like to welcome and you can glorify Guru Maharaj. श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो महाराज जी से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ,
बट उनको शिष्यों से बहुत बढ़िया नो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, काइंडली टॉलरेट दैट। सो उनका शिष्यों से बहुत अच्छा संग मिला मुझे। वन ऑफ द इनिशियल मुझे गाइड्स थे हिज ग्रेस पुरुष अवतार प्रभु, तो उन्होंने बहुत टाइम दिया मुझे और बहुत सिखाए। और उसके बाद में सुंदर गोपाल प्रभु वो हमारा बेस का इंचार्ज था और उनसे भी काफ़ी शिक्षाएं मिले मुझे। और महाराज का बारे में मैं काफ़ी सुना उन लोगों से, वो डिवोटीज से। और महाराज हमको पता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिलर्स ऑफ इस्कॉन, तो इस्कॉन का जब मिडिवियल पीरियड जब बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स थे, तो उस टाइम में नो महाराज जी बहुत महाराज जी एंड मेनी अदर नो सीनियर वैष्णवस नो उस टाइम पे बहुत नो इस्कॉन को रक्षा दे रहे थे और इस्कॉन को आगे लेके चल रहे थे। सो वो बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। सो एक्सेप्ट फॉर इतना लाइक जैसा राधापति प्रभु बोल रहे थे, इतना हाई लेवल का डिवोटी नहीं है तो वो ये सब काम करने का बहुत मुश्किल है। नो ये संस्था जब चैतन्य महाप्रभु चले गए थे तो उस टाइम पे नो जीव गोस्वामी थे, आज जीव गोस्वामी का भी अपीयरेंस डे है, तो उस टाइम पे जीव गोस्वामी थे और गोस्वामी बाकी गोस्वामी लोग थे। तो नो वो लोग नो आगे खड़ा होके इसको ये किए थे, लाइक नो चैतन्य महाप्रभु का मिशन को आगे बढ़ाए थे। ऐसा ही प्रभुपाद इतना बड़ा आचार्य नो ये धरती छोड़ के चलने के बाद नो ये सब डिवोटीज नो वो उन्हीं का कृपा से हम लोग अभी इस्कॉन को देख पा रहे हैं, नहीं तो इस्कॉन नो ऐसा इतना हेल्थी सिचुएशन में होने का संभव ही नहीं है एक्चुअली। और हम लोग नो काफ़ी डिवोटीज नो ये पॉइंट बताए होंगे, बट ये मेरा प्यूरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। जैसा महाराज का मंगल आरती का व्रत, सो जितना भी लेट होने दीजिए, जितना भी लेट नो महाराज जी मंदिर में पहुंचने दीजिए, या जितना भी लेट प्रोग्राम्स होने दीजिए, तब भी महाराज कभी भी नो मंगल आरती मिस नहीं करते थे। और मंगल आरती में मैं काफ़ी बार मैं मायापुर में और अलग अलग मंदिरों में देखा हूँ कि महाराज इतना ओल्ड एज में लाइक नो कभी कभी दिखता है कि लाइक वो आरती घुमाने में भी बहुत लाइक बहुत धीरे धीरे घुमाते थे। सो इतना मेहनत करके नो ये इतना आसान नहीं है। कोई भी नो बोल सकते हैं कि लाइक नो इतना इतना मेहनत क्यों लेना है। सो अगर महाराज कंफर्टेबली रहना है तो उनको सारा कुछ व्यवस्थाएं हैं, फिर भी लाइक भगवान का सेवा नो आगे रख के वो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये बॉडीली लेवल में नहीं है, वो लोगों का अलग ही आनंद मिल रहा है ये सब सेवा करने में। सो वो लोग इतना उत्सुक है वो करने में। और नो डिवोटी केयर, जैसा नो काफ़ी डिवोटीज भी नो शेयर कर रहे थे अपना पर्सनल इंटरेक्शन विद महाराज। तो मैं भी एक बार शायद से बॉम्बे में किसी मंदिर में महाराज को मिला था, किसी मीटिंग में जाने के टाइम पे। सो लाइक महाराज तो कभी मुझे देखा नहीं और जानते नहीं, फिर भी लाइक वो एक दूसरे को आमने सामने आ गए थे। लिफ्ट से महाराज जी निकल रहे थे, मैं लिफ्ट के अंदर जाने के लिए वेट कर रहा था। सो तब भी नो वो वेट करके कोई कौन है पता नहीं, फिर भी लाइक कैसे हैं नो किधर से हैं ये सब डिटेल्स पूछ रहे थे। सो ये बहुत ही अच्छा, इतना बड़ा व्यक्ति से लाइक हम लोग एक भी छोटा सा बातें मिल गए तो ये बहुत ही नो हम लोग जीवन उसको चेरिश कर सकते हैं, जीवन भर उसको नो हृदय में रख सकते हैं एक्चुअली। सो ये सब चीज अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हमको इस्कॉन में, नो हमको ये पता है कि कुछ लोग ऐसा हैं सो जिसके पास जाएंगे तो जरूर शरण मिलेगा, जरूर नो वो रक्षा देंगे। तो ऐसा व्यक्ति नो ऐसा नो कुछ व्यक्तियों में से महाराज भी एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। और नो हम लोग ये भी मिला था किसी मीटिंग्स में, हमको कुछ सेवा मिला था लाइक कुछ रिपोर्ट्स बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए। तो उस टाइम पे ये ब्यूरो मीटिंग्स में और ये सब मीटिंग्स में लाइक बाकी भक्तों को अलाउड नहीं है, बट ऐसा सेवा का द्वारा नो हम लोग जाने का कुछ कभी मौका मिला था। तो उस टाइम पे देखेंगे तो इतना स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल डिवोटीज हैं तो महाराज जी, बट वो मैनेजरली भी लाइक इतना डिटेल में जाते थे
इतना एक एक प्रॉब्लम को सुन के उसके बारे में टाइम स्पेंड करके उसके बारे में चर्चा करके, सो लाइक नो कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक मैं स्पिरिचुअली लाइक जप करना चाहिए लाइक नो, या किसी प्रचार में जाना चाहिए, ये सब मीटिंग में क्या लाइक नो ये वही प्रॉब्लम को बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा हम लोग को मन में आ सकते हैं। बट नो महाराज जी जैसा लाइक डिवोटीज नो, उनको ये इस्कॉन प्रभुपाद का शरीर है और इस्कॉन को कुछ भी तकलीफ है तो वो नो वो ऐसा सोचते हैं कि प्रभुपाद का तबीयत में कुछ ये है और प्रभुपाद का पर्सनल सेवा करना चाहिए, ऐसा वो नो ये डिवोटीज इस्कॉन को इतना नो पालन पोषण किए हैं नो, वैसे ही बोल सकते हैं हम लोग, पालन पोषण किए हैं नो, ये बहुत ही नो इंस्पिरेशन मिलता है। और इतना बड़ा संस्था अपने आप से ऐसा ही नहीं चलेगा, सो कोई ना कोई तो इसको पीछे नो अपना खून नो दे रहे हैं, अपना नो परिश्रम दे रहे हैं, तभी तो इतना बड़ा संस्था एक्चुअली चल रहा है। सो नो वो सब चीज नो जब हम लोग सोचेंगे, ये कुछ लोग कुछ डिवोटीज ऐसा हैं गोपाल कृष्ण महाराज जैसा, सो ये डिवोटीज अपना पूरा खून और परिश्रम देके नो इस्कॉन को खड़ा किए। सो और महाराज जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्पिरिट वो भी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। सो मैं कई मेरा कुछ ब्रह्मचारियों को लाइक दिल्ली में भेजा था लाइक इनिशियली फॉर फर्स्ट बैच ट्रेनिंग के लिए, तो वो लोग वापस जब आए थे नो बहुत नो 3-4 महीने में लाइक बहुत ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्पिरिट पिकअप करके आए थे और नो बहुत बहुत बढ़िया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे उसके बाद में से। सो ऐसा और एक और चीज है, मेरा गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी एंड नो गोपाल कृष्ण महाराज दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और दोनों इतना क्या लाइक नो बहुत ही उनका एक बार हमारा शेषाद्रिपुरम मंदिर में दोनों महाराज जी एक ही साथ आए हुए थे और लेक्चर दे रहे थे, तो उस टाइम पे गोपाल कृष्ण महाराज का थोड़ा सा गले में कुछ प्रॉब्लम था और वो बात नहीं कर पा रहे थे। बट जब नो अपना मित्र नो लाइक जयपताका महाराज को देखें और प्रीचिंग का मौका देखें, तुरंत उनको बोलना नो चालू हो गए और महाराज जी को बोला गया कि ऐसा नो आप थोड़ा नो विश्राम कीजिए और नो आप बोल नहीं पाएंगे ये सब चीज। बट देन महाराज बोले थे लाइक प्रीचिंग का अपॉर्चुनिटी जब मिला तुरंत एनर्जी मिल जाता है, तुरंत नो उत्साह मिल जाता है और नो हमारा पूरा नो ताकत फिर वापस आ जाता है। तो ऐसा नो वो देख के मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिला कि महाराज जी कितना वो डिवोटीज को देख के और प्रीचिंग का अपॉर्चुनिटीज को देख के तो तुरंत उनको नो कुछ भी प्रॉब्लम है कमजोरी है सब कुछ नो साइड में रख के लाइक वो लोग फिर से शेर जैसा बन जाते हैं लाइक सामने नो प्रीचिंग करने के लिए लाइक आगे आ जाते हैं। सो ये सब थोड़ा सा मेरा इंटरेक्शंस और मेरा ऑब्जर्वेशंस महाराज का हुआ था, वो बहुत ही मैं धन्य मानता हूँ उसके लिए और इससे मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हरे कृष्णा। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। बहुत धन्यवाद प्रभु जी फॉर यू एंड यू आर रियली स्पोकन वेरी नाइस हिंदी। आपने बहुत अच्छी हिंदी में बोला। सभी भक्तों के लिए आपका जो अनुभव था और मैं अनुरोध करूंगा हिज ग्रेस रुक्मिणी रंगा कृष्णदास प्रभु से, इनका रंगराज प्रभु जी इफ ही इज देयर। रुक्मिणी रंगा कृष्णदास प्रभु जी, आई थिंक ही इज नॉट देयर। Prabhu, he could not join. Next, yes, Prabhu ji, you are there. Rangraj Prabhu ji, Rukmini Ranga Prabhu जी नहीं, तो मैं अनुरोध करूंगा सुधीर गोपाल प्रभु जी से जो IBC से हैं। सुधीर गोपाल प्रभु जी, you can glorify Guru Maharaj. अनुकूल केशव प्रभु is there, maybe he can. अच्छा, प्रभु जी आ गए हैं। ओके, ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा प्रभु जी। सो मैं अनुरोध करूंगा फिर अनुकूल केशव प्रभु जी से कि वे महाराज जी के बारे में कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। अनुकूल केशव प्रभु जी हमारे इस्कॉन शेषाद्रिपुरम मंदिर के प्रेसिडेंट हैं और इनके मार्गदर्शन में बहुत ही एक सुंदर मंदिर का वहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो आइए मैं और समय न लेते हुए मैं अनुरोध करता हूं अनुकूल केशव प्रभु जी से
कि वे महाराज जी का गुणगान करें। अनुकूल केशव प्रभु जी, ओवर टू यू। प्रभु जी शायद है नहीं अनुकूल प्रभु जी। ये अभी किसी ने बताया कि अनुकूल केशव प्रभु जी हैं। सुधीर गोपाल प्रभु आप ठीक है प्रभु। या सो देन आई विल रिक्वेस्ट, मैं सुधीर गोपाल प्रभु जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना गुणगान गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताएं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सो मैं तो यहाँ पे सुनने के लिए आया था, लेकिन श्री गौर प्रभु जी बोले कि ना थोड़ा दो शब्द बोलने के लिए, सो मेरे शुद्धिकरण के लिए एंड महाराज के गुणगान के लिए मैं थोड़ा दो शब्द बोलूँगा। इसलिए हम जब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में सोचते हैं, एक ही शब्द आता है मेरे दिमाग में, वो अद्वितीय है ना। जैसे हम भगवान कृष्ण का नाम है असमोर्ध है ना, ऐसे ही गोपाल कृष्ण महाराज अद्वितीय है। कैसे अद्वितीय है ना, पुस्तक वितरण में इतना सुंदर सुंदर मंदिर का निर्माण करने में उनका जो मॉर्निंग साधना है, उनका जो डेटी वर्शिप में उनका conflict management and devotees taking care of so many wonderful projects all over the world, and also right connecting to the big people, जैसे हमारे देश की जो मुख्य है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उनके साथ कैसे उनसे मिलके how to really establish a good relationship with the government, and he is really second to none, and because of him उन्हीं के लिए हमारा संस्था का इतना विजिबिलिटी है, ब्रांडिंग है, बिकॉज ही इज डूइंग सो फ्लॉलेसली। सो उन्हीं के लिए हम आभारी हैं, लेकिन हम हमारा कृतज्ञता हम नहीं बता सकते कि कैसे आभार करें। लेकिन एज ए फॉलोअर और एज ए शिक्षा डिसाइपल और दीक्षा डिसाइपल, राइट, हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है ना, कि उस कर्तव्य को हम कैसे निभाए कि जो हमारे महाराज है वो कैसे खुश रहेंगे। बिकॉज स्पेशली श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, क्योंकि मैं सुन रहा था जब महाराज एड्रेस कर रहे थे कि यस यू शुड रीड द बुक्स एंड यू शुड डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स। महाराज का ऑलवेज ये दो इंस्ट्रक्शन रहता है। रीडिंग द बुक्स, जैसे भागवतम का फर्स्ट कांटो फर्स्ट चैप्टर हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, उसका 8th श्लोक में ही प्रभुपाद बोलते हैं, द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ is in satisfying the spiritual master and thereby getting his sincere blessings. फिर प्रभुपाद लिखते हैं, it is essential therefore that a disciple be very much obedient and submissive to the bona fide spiritual master. इसका मतलब यही है कि हमारा जो आध्यात्मिक में कैसे हम सफल प्राप्त करेंगे, ओनली हमारे गुरु महाराज को कैसे संतुष्ट करेंगे और उनके आशीर्वाद कैसे लेंगे, है ना। एंड और ये जो हम जो शिष्य, राइट, शिष्य हमको कैसे आध्या ओबीडिएंट एंड सबमिसिव, हमको कैसे वी शुड बी respectful, we should listen to whatever is really coming from his mouth, and how and फिर क्या होता है, क्योंकि ये जो हम बद्ध जीव है, लेकिन जो हमारे गुरु महाराज जो है, हमारे जो आचार्य है, दे आर सो क्लोज, वो भगवान के बहुत निकटतर है, भगवान के बहुत निकट है। और जब देखते हैं कि हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं महाराज की खुशी करने के लिए, तो महाराज का वो ब्लेसिंग रहता है, महाराज का ब्लेसिंग मिलता है। जब महाराज ब्लेसिंग मिलता है तो भगवान कृष्णा सोचते हैं, ठीक है, ये तो बद्ध जीव है, लेकिन मेरे भक्त जो है, मेरे जो निकटतर जो सेवक है, वो उनको मर्सी दे रहा है, तो मैं उनको मर्सी दूंगा। सो हमारा जो शुद्धिकरण होगा, हम कैसे भी भगवान की जो मर्सी मिलेगा, कैसे मिलेगा, ओनली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, राइट। एंड मैं कुछ दिन पहले महाराज का वो बुक पढ़ रहा था, द पर्पस ऑफ लाइफ,
स्पेशली महाराज वो ऋषभ देव के टीचिंग्स के ऊपर बहुत सुंदर सा बुक बनाए हैं, हमको वो पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर किताब है, स्पेशली गिविंग नाइस मैसेजेस फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ ऋषभ देव, फ्रॉम ऋषभ देव की शिक्षा के ऊपर। और सेकंड शिक्षा जो है उनका जो सेकंड श्लोका है, महात सेवाम द्वारम अहोर विमुक्ते तमो द्वारम यशितम संगी संगा महांतस्ते समचिता प्रसन्नता विमोनिव सूद साधव। ये जो श्लोका पे महाराज बोलते हैं कि हाउ एज ए साधक दो चीज बहुत जरूरी है। वो क्या है कि हमारा दृढ़ता, हमारा डिटर्मिनेशन, बिकॉज महाराज बोलते हैं कि विदाउट डिटर्मिनेशन वी कैन नॉट मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, एंड अनलेस वन इज डिटरमाइंड वन कैन नॉट स्टे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब हमारा दृढ़ता नहीं रहेगा हम ये आध्यात्मिक स्तर पे प्रगति नहीं कर सकते, और जब हम प्रगति नहीं कर सकते तो हम ये जो कृष्णा भावामृत आंदोलन से बाहर है, राइट। और वही महाराज से देखते हैं कि उनका ये जो हमने बताया कि कैसे अद्वितीय महाराज है, इतने सारे पे कैसे है, क्योंकि महाराज इतना दृढ़ता पे ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये सब he has taken so much of responsibility for the movement, and महाराज वो पहले से बोल रहे थे कि हमको कैसे अटेंशन रहना चाहिए, लाइक फॉर आवर चैंटिंग, फॉर आवर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर आवर कितना ध्यान रहना चाहिए फॉर वॉट एवर वी डू इन द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। सो इन दिस प्रोसेस एज अ डिसाइपल, एज अ शिष्य, हमको ये दो चीज ध्यान रहना चाहिए कि हम कैसे ध्यान पूर्वक करें और कैसे दृढ़ता के साथ करें, राइट। सो दैट्स व्हाट वी ऑलवेज शुड थिंक, और हमको हर टाइम हर समय यही सोचना चाहिए कि मैं कैसे अच्छे से अच्छे शिष्य बन सकूं, और कैसे बन सकूं, मैं उनका कैसे शिक्षा जो है कैसे पालन करूं, और वो जो उदाहरण दिए हैं उनको मैं कैसे अच्छी से अच्छी तरह से पालन करूं, और मेरे संबंध मेरे आचार्य की तरफ, मेरे गुरु महाराज की तरफ कैसे ज्यादा से ज्यादा कठिन हो। कैसे कठिन होगा, क्योंकि मैं जब उनका when I listen to his instruction, when I follow his teachings, when I follow his examples. So on this auspicious day, I pray at the lotus feet of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj and all the assembled devotees, so that we can follow his teachings and somehow please him. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai. थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ही शब्द में कंक्लूड कर दिया था, अद्वितीय, एंड दैट वर्ड रियली गोज वेरी वेल। थैंक्स फॉर ग्लोरीफाइंग गुरु महाराज। मैं हमारे बीच में हिज ग्रेस चैतन्य अवतारी प्रभु हैं। प्रभु जी, यू आर देयर? चैतन्य अवतारी प्रभु? I think so. Yeah. Okay. So Chaitanya, thank you for joining us and taking your time to glorify Guru Maharaj ji. चैतन्य अवतारी प्रभु जी मागड़ी रोड के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही अथक परिश्रम कर रहे हैं वहाँ के मंदिर को और वहाँ के भक्तों को उन्हें संग देने के लिए। So over to you प्रभु जी, आप जो you can glorify Guru Maharaj. Thank you, Prabhu. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai. Thank you so much for giving me an opportunity to speak about a wonderful Vaishnava Acharya of the Lord. This is my purification. I consider this my purification, though I'm not qualified to speak about exalted. हिंदी में थोड़ा लेंगे, राजस्थान महाराष्ट्र शब्दों की हिंदी, हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है प्रभु। कोई बात नहीं, चलेगा प्रभु जी। जो हम सोचेगा सब भूल जाऊंगा मैं। पहले मैं एक बार इंग्लिश में बोल दूंगा, कोशिश करूंगा बीच में। So as I was mentioning, such an exalted Vaishnava devotee of the Lord. For many years, he is I consider him one of my Siksha Gurus, because ISKCON and Srila Prabhupada has given wonderful followers for us to walk in their lines, in their footsteps. So a couple of things which is really I look up to Gopal Krishna Goswami Maharaj is that one of the things is that whether rain or shine, that I see Maharaj
never misses Mangalarati and wherever he is in the world. Now you see him that he is actually attending or he is actually doing the Arati. So for those of us that now we know that 95% more above devotees are actually living outside the ISKCON temple. We're not living in temple. जो ऐसा जो भक्त लोग का ये बहुत उत्साह चीज है, क्योंकि हम मंदिर में रहेगा, जब मंदिर में रहने वक्त हम आरती करेंगे ऐसा नहीं, तो हम कैसा ऐसा वाला जो उत्तम भक्त से हम उत्साह लेके हर दिन हम हमारा घर में मंगल आरती कर सकते करके महाराज एक उत्तम उदाहरण है. हम महाराज का उसी टाइम से हम महाराज का ये बहुत उत्साह से हम फॉलो करने के लिए कोशिश करता है. फिर भी बहुत ये तो जो भगवान का जो अपार करना बहुत जरूरी है, तो ऐसा हम ट्राई करते हैं, लेकिन महाराज इज वंडरफुल एग्जांपल फॉर अस टू फॉलो. दूसरा चीज, second thing which I always look up to Maharaj is his commitment to distribute Srila Prabhupada's message. Now I see that for year after year, every year, you see that Delhi is always standing first in book distribution. It shows that the kind of the commitment with which Maharaj is actually taking Srila Prabhupada's instruction into his life. And rightly so, that there's a nice exchange between Srila Mayapur and Delhi in terms of transcendental competition. And Maharaj is also being a management in Mayapur. So they are not only in Delhi, they also get inspiration from Maharaj in Mayapur. It's so wonderful, so nice to see that so much of book distribution happens in India. And this year again, and one of Maharaj's wonderful disciple, she is here, I forgot her name, but she is here somewhere near our center. She comes every time and inspires all the devotees here. We go out whenever we go out for book distribution. So that credit goes to Maharaj, because it's a real inspiration. I can say that this is not a very strong line for us that we are learning in terms of how will we do more book distribution. So I always look up to Maharaj and his inspiration, how every single disciple, every single devotee in Delhi and wherever Maharaj is managing his zone, everybody's, just don't keep quiet. They're distributing Srila Prabhupada books. It's really amazing. So this is the second thing which really inspired from Maharaj. And the third thing is that at least I've been seeing in the meetings, in the GBC meetings or in any of these meetings, I see how Maharaj is very focused in terms of what Srila Prabhupada wants and nothing beyond. It's very focused. This is what Srila Prabhupada wants, and this is what. Anything, whatever the things when it comes to deciding anything, always refer back, if Srila Prabhupada have done this, and this is how we should have done, and this is what we need to do. So it's very clear, very focused in terms of how this movement has to be taken forward and how it has to be handed over to the next generation. So I see that because, many occasions I had an opportunity to interact with Maharaj. He was so cooperative in terms of, how he is going out of his way to, whenever he sees me in doing some responsibility, he walks up to me. There's no need for him to do that. He walks up to me and asks him, are you getting enough support? Is there anything which I can do for you? So it really just touches your heart just to see that how such an exalted personality also, even though we are trying to do some insignificant service, they're ready to support, encourage, and ensure that all of us are serving for the pleasure of Srila Prabhupada. That's a feeling he gives for anyone. So I've seen that in ISKCON, many Maharajas, they have their own style, charisma, when it comes to Gopal Krishna Maharaj. Again, one of the things which really touches my heart is that if you see anyone walking around, he just stops by and say Hare Krishna, ask about their welfare, their name, where they come from. Anybody who's new, anybody who's an ISKCON devotee, they feel very nice, that they feel secure. And this is that's when one can feel that how Srila Prabhupada's words is actually true, that he built a house where everyone can just live. And that's what every of this Srila Prabhupada's followers are making that come true. And Gopal Krishna Maharaj is one of the strong
personalities to follow, and also to see that that actually is in real terms that is also being followed. So like this, there are many wonderful qualities which I can go on discussing and describing. There is no end, but I would like to stop here because I know that many of the speakers are in the queue. I would just pray on this auspicious observation of his Vyasa Puja and pray to Sri Prahlad Narsinghadev, Panchatattva Bhagwan, Radha Madhav, Ashtasakis, and Sri Jagannath Baldev Subhadra, that may Maharaj live for long, many years to come, and for the pleasure of Srila Prabhupada, and just ensure to train and deploy all of us in Srila Prabhupada's service. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you, Prabhuji. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you very much for glorifying Guru Maharaj and offering your prayers for his good health and long life. And so we'll move forward. प्रभु जी, अनुकूल केशव प्रभु जी ज्वाइन हो चुके हैं. आई थिंक उनका नेट प्रॉपर नहीं है तो ज्वाइन हो रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं. कैन यू कंफर्म? मेरे ख्याल से नहीं है प्रभु जी, अभी तो देख नहीं रहे. नहीं, क्योंकि उनका बीच में दिख रहा था नाम, फिर वापस नहीं दिख रहा है. सो आई एम नॉट एबल टू कंक्लूड. तो we'll move forward. Please confirm. विदुर माधव प्रभु जी को अगले प्रोग्राम में जाना है. Yes, yes. So मैं अनुरोध करूंगा इस ग्रेस विदुर माधव प्रभु जी से कि वे महाराज जी का गुणगान करें. विदुर माधव प्रभु जी. विदुर माधव प्रभु जी के बाद में है ज्योतिश्वर प्रभु जी और मिथिलाधीश प्रभु जी. सो कृपया आप तैयार रहिए. विदुर माधव प्रभु जी, यू आर एबल टू हियर मी? आप सुन रहे हैं विदुर माधव प्रभु जी? नाम तो दिख रहा है. कहते हैं कि जो अति सौभाग्यशाली होता है उसे एक प्रामाणिक गुरु का संग करने का अवसर कृष्ण की कृपा से मिलता है. दोनों कृष्ण तथा गुरु की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति लता बीज प्राप्त कर सकता है. चैतन्य चैतामृत में भी कहा है कि ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता ब्रिज. तो मैं अनुरोध करूंगा हिज ग्रेस विदुर माधव प्रभु जी से. विदुर माधव प्रभु जी नहीं है अभी. सो ज्योतिश्वर प्रभु जी. हरे कृष्णा. ज्योतिश्वर प्रभु जी. और मिथिलाधीश प्रभु जी. प्रभु जी मैं हूँ, बट लेट्स सी अगर विदुर माधव प्रभु आ जाते हैं तो, बिकॉज उन्हें प्रोग्राम में जाना है जैसा रेवती प्रभु ने बोला था. बट आई थिंक प्रभु जी शायद कनेक्टेड हैं. उनका नाम तो दिखा रहा है बट इज नॉट एबल टू. उनको विदुर माधव प्रभु 5 मिनट टाइम पूछ रहे हैं. अच्छा ठीक है. तो मिथिलाधीश प्रभु यू कैन गो अहेड, यू कैन ग्लोरीफाई महाराज जी. मिथिलाधीश प्रभु आप. जी प्रभु. यस प्रभु जी प्लीज. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण स्वामी गोपाल कृष्ण गोस्वामी स्वामी नामे. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी श्री सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी. पहले मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे सौभाग्य दिया महाराज के बारे में कुछ बोलने का. मैं बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हूँ महाराज के बारे में या किसी शुद्ध वैष्णव के बारे में कुछ बोलने का, बट मेरी शुद्धि के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा. मेरा महाराज से कभी भी पर्सनल संग नहीं हुआ, ऑल्दो महाराज हम लोग के जोन के जीबीसी हैं इंदौर उज्जैन के, और उज्जैन आते भी रहे, परंतु मैं महाराज के साथ कभी नहीं हुआ. परंतु महाराज के शुद्ध शिष्यों के साथ में मेरा बहुत ज़्यादा संग रहा है, एसोसिएशन रहा है.
और मैं महाराज के बारे में ज्यादा नहीं, 3 बातें बोलना चाहूंगा जो मैंने महाराज की क्लासेस में सुनी है, भक्तों के साथ संग करके सुनी है। इज आई एम ऑडिबल? यस प्रभु जी। तो पहला ये, महाराज हर अपनी कक्षा में जप के ऊपर बहुत महत्व देते हैं। नॉर्मल सिर्फ जप के ऊपर नहीं, महाराज ने आज की कक्षा में भी जैसे बोला था कि हमें ध्यान पूर्वक जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। और वो मैं महाराज के शिष्यों के मैं देखता हूँ, जो जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ या जिनके साथ मेरा some what you call in English, we interact with each other most of the time in the temple. सॉरी, मैं मेरे महाराज की ग्लोरिफिकेशन में हिंदी इंग्लिश मिक्स करता रहूंगा। तो मैं उन भक्तों में देखता हूं कि वो कितना ध्यान पूर्वक महाराज की इस शिक्षा को लेते हैं और हर समय सीरियसली जप करते हैं। उनके लिए जप बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ध्यान पूर्वक महाराज के आदेश का पालन करते हैं और जप करते हैं। दूसरी बात जो मुझे महाराज की बहुत अच्छी लगती है और जो महाराज हर समय बोलते हैं कि जो आपकी इच्छा है वो भगवान की इच्छा जैसे होनी चाहिए। जो भगवान की इच्छा है वही इच्छा होनी चाहिए। परंतु हम समझे कैसे कि भगवान की क्या इच्छा है? तो उसके लिए महाराज हर समय एम्फेसाइज करते हैं कि आप गुरु शास्त्र का संबंध लें, अच्छे से समझें कि क्या भगवान की इच्छा है नहीं। और ये बात हर समय इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो महाराज सबसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं हर किसी से, वो ये है कि हमें शिक्षा अष्टकम के तीसरे श्लोक को living in that together because he has left lot of place for God. तीसरा श्लोक शिक्षा हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आप कंटिन्यू करिए प्रभु जी। महाराज जो बोलते हैं हमें शिक्षा अष्टकम की तीसरे श्लोक का तृणापि भी सुनी चेना का माला बना के रखना चाहिए। परंतु हम ये बात हर रोज मंगल आरती के बाद में ये श्लोक अगर रिसाइट करते हैं, पढ़ते हैं, दूसरे भक्तों से जब मिलते हरे कृष्णा। मुझे लगता है प्रभु जी का नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू है। मिथिलाधीश प्रभु, हरे कृष्णा। मिथिलाधीश प्रभु, सो प्रभु जी, आई थिंक मिथिलाधीश प्रभु का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। विदुर माधव जी प्रभु ज्वाइन हो गए हैं। विदुर माधव प्रभु जी लाइन पर तो है लेकिन ऑडियो में नहीं है शायद। विदुर माधव प्रभु जी, यू कैन हरे कृष्णा। तो आई थिंक विदुर माधव जी प्रभु जी भी शायद नहीं है, उनका कनेक्शन तो दिखा रहा है बट आई थिंक इज नॉट एबल टू हियर अस। मैं नेक्स्ट वी कैन मूव ऑन। गुरुराम प्रभु जी हैं। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक्स। यू कैन ग्लोरीफाई प्रभु जी, यू कैन ग्लोरीफाई गुरु महाराज। Thank you so much for this opportunity, Prabhuji. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Gopal Krishna Goswami Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshtarine. All glories to Gopal Krishna Goswami Maharaj. हरे कृष्णा। मेरा भी हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा हिंदी में बोलने के लिए। मुझे 2004 में पहली बार
जब मैं मायापुर चौथी बार गया था, मगर मुझे कोई ऐसा महाराज जैसा यानी कि मेरा गुरु महाराज का अलावा, यानी कि मैं जयपताका महाराज का अलावा किसी महाराज को मैं बात नहीं किया था, यानी कि पर्सनली भी बात नहीं की था। बहुत लेक्चर्स सुना था और सभी है, मगर उस टाइम 2004 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था। तो एक्चुअली वो कैसा कोइंसिडेंस था कि एंटायर इस्कॉन वर्ल्ड वाइड हमारा ये महाराज कौन था महाराज, एक जी उस मैं भूल गया उसका नाम अभी। तो वो महाराज का देहांत हुआ था, यानी कि ही लेफ्ट द बॉडी। तो उस टाइम क्या हुआ था, नेक्स्ट 2 व्हीकल्स जो है उसमें मैं गोपाल कृष्ण महाराज का व्हीकल में था, बिकॉज उस टाइम क्या हुआ था, मैं मायापुर में था, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का अंडर में 1 महीने में सर्व किया था। तो उस टाइम क्या हुआ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था। मुझे मालूम नहीं था, महाराज को देखा था मगर मैं कभी सोचा नहीं था कि यही गोपाल कृष्ण महाराज है। मैं जब तक वो गाड़ी में आके बैठा, उस टाइम मुझे मालूम पड़ा कि ये गोपाल कृष्ण महाराज है, क्योंकि मैं कभी ज्यादा उसका फोटो भी मुझे उतना नहीं दिखा था, यानी कि मैं देखा नहीं था। तो उस टाइम क्या हुआ कि सब लोग बैठ गए, उनका प्राइवेट यानी कि जो सेवा करते हैं महाराज का पर्सनल असिस्टेंट, सब लोग बैठ गए थे और मुझे एक बॉक्स दिया, ऐसे ही उठा के दे दिया मुझे, और मुझे बोला, मैं मिडिल में बैठा था और मुझे वो बोला कि वो ध्यान से रखो। तो मैं ऐसे लेके मैं बैठा था। तो मुझे कैसा लग रहा था कि मैं उस दिन बहुत ऐसा लाइटली फील हो रहा था, बहुत कुछ, यानी कि जो भी मेरा भौतिक का जो प्रॉब्लम है सब उस टाइम मेरा पूरा चला गया, यानी कि वो मोमेंट में मुझे ऐसा लग रहा था। तो क्या हुआ कि तो आगे बढ़े हम लोग, एक्चुअली फ्रॉम मायापुर से हम लोग कोलकाता जा रहे थे। एक्चुअली मायापुर पे कोलकाता का बीच में जा रहे थे, क्योंकि वो महाराज का देहांत हो गया था और वो स्पॉट देखने के लिए हम लोग जा रहे थे। तो वो ऐसा कोइंसिडेंस था। तो मैं वो ये लेके, वो बॉक्स लेके मैं जा रहे थे। तो उस टाइम महाराज एक डाब का दुकान में यानी कि उसको डाब पीना था, तो महाराज को डाब करके पी रहे थे। पीने के बाद मैं अकेला बैठा था और सब लोग डाब पी रहे थे। और फिर महाराज ने मेरा खिड़की का अंदर आया, अंदर आके बोला कि ये बहुत होशियारी से देखभाल कर रहे हैं ना। मैं बोला, हाँ महाराज, मैं जो भी मेरा ये है वो ऐसे ही मैं रखा हूँ, मैं कुछ हिला नहीं रहा हूँ। और महाराज बोला, उसमें क्या है मालूम है, मेरा गौरनीता डीटी से। मैं शॉक हो गया ऐसे कि मैं उधर मायापुर में गया था दर्शन करने के लिए, और महाराज को भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को मैं थोड़ा इधर उधर सेवा कर रहा था बस। और उस टाइम महाराज ने कि ऐसा मुझे अवकाश दिया, मुझे इवन दो मैं पूरा अनक्वालिफाइड था, तो फिर भी वो मुझे समझा कि ये कुछ देखभाल कर सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहा है महाराज। तो मुझे बहुत ऐसा, दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद महाराज। एंड मैं तो ऐसा, यानी कि उसके बाद में मुझे उस टाइम महाराज का कोई डिसिपल्स मालूम नहीं, किसी, यानी कि आई हैड नो इंटरेक्शन विद एनीबॉडी। सो महाराज डायरेक्टली मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिया था। और फिर बाद में ओवर द इयर्स जब मेरा मैरिज फिक्स हुआ, गोपाल कृष्ण महाराज दिव्य दर्शन देवी दासी का मुझे ये हुआ कि उस टाइम भी जब एक ये इंस्टेंस हुआ कि आई वांटेड, उस टाइम मेरा गुरु महाराज से मुझे परमिशन
लेना था कि ऐसा at the time getting married बोल के एक I had to put a word. So that time वो instead of writing email में लिखने से पहले मैं सोचा कि गुरु महाराज को क्या क्या बोलना है. So I was about to write everything. तो सडनली न्यूज आया कि मेरा गुरु महाराज इधर बैंगलोर आ रहा है. तो मैं सोचा कि मैं डायरेक्टली जाके बात करूं. तो जब मैं हमारा गुरु महाराज से जाके मिला और मेरा गुरु महाराज मेरा कंधे के ऊपर हाथ रखा, बोला कि व्हाट इज द न्यूज. मैं ऐसा बोला कि आई जस्ट वांटेड टू इंटीमेट यू गुरु महाराज दैट आई एम गेटिंग मैरिड. सो हमारा गुरु महाराज बोला कि हु इज द गर्ल. मैं बोला वो गोपाल कृष्ण महाराज का एक शिष्य है. वो बोला and he became very happy. He said myself and Gopal Krishna Maharaj are very kind friends, very close friends. I have no objection, he said. मैं उस टाइम मुझे मालूम पड़ा कि गोपाल कृष्ण महाराज का क्या, बिकॉज पहले मुझे उतना ज्यादा मालूम नहीं है तो कौन गोपाल कृष्ण महाराज है क्या है. सो ओनली अभी जब इसका डिसाइपल्स बहुत हो गया और मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो उस टाइम आई हैड नो आइडिया, नो क्लू. सो आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट. एंड लेटर ये सब मेरा पर्सनली जो हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ. लास्ट टाइम उडुपी यात्रा हम लोग गए थे कि रेवती लीला प्रभु गेव अस एन अपॉर्चुनिटी. वो उसका माध्यम से हमको अपॉर्चुनिटी मिला कि हमको गोपाल कृष्ण महाराज का अबाउट माई सेल्फ एंड माई वाइफ विथ माई सन वी गॉट अबाउट 40 मिनट उससे पर्सनली बात करने के लिए एक अवकाश मिला. और महाराज वाज जस्ट वेटिंग एक्चुअली. और हम लोग पीछे थे, हम लोग कुछ कर रहे थे, मगर महाराज सब जो डिवोटीज आए थे उस सबको बात करके तो ही गेव अस सो मच टाइम. 40 मिनट. इफ आई डोंट थिंक उनका ही शिष्य को मिला है नहीं, मुझे मालूम नहीं उतना, मगर ही गेव अस दैट अपॉर्चुनिटी. ही गेव अस सो मच केयर एंड ही वाज सो डिटेल्ड इन दैट मीटिंग. एक एक क्वेश्चन को भी वो पूछ रहे थे हम. एंड आई was thinking how to answer that, because even though it is so simple, the answers questions are so simple, but the way he touched our heart was, it's a miracle. I have not seen any spiritual master giving so much time to a disciple and the family especially. I was very much touched with the compassionate, how his heart is so much so great, and he's so accommodative, as so many devotees here told. And मेरा एक मानना है कि he is one of the like वो वैष्णव जो है ऐसा जो आता है, it is just लव मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि होय. So it's a wonderful opportunity. I never thought that I will get such an opportunity from such a exalted pure devotee of the Lord. So my family is very much blessed. And in fact, in that Udupi yatra, my wife was not so much following the chanting. हरे कृष्णा. आई थिंक गुरानो कृष्णदास प्रभु जी का नेटवर्क शायद निकल गया है. ये टेक्निकल ग्लिचेस हैं. विदुर माधव जी प्रभु जी हमारे साथ में हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि विदुर माधव प्रभु जी, यू कैन ग्लोरीफाई गुरु महाराज जी. हरे कृष्णा. Yes, नमो Guruji, आप बोलिए. विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने.
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. So I'm really grateful to have got this opportunity to say a few words. I am absolutely insignificant. That I never thought I would ever get an opportunity to speak. तो विदुर माधु मेरे को प्लीज हिंदी बताइए. मेरे को हिंदी इतना अच्छा नहीं कोई आता बात नहीं, है. चलेगा प्रभु जी. ओके, आई विल ट्राई. महाराज का शिष्य को इच्छा के लिए मैं प्रयत्न करूंगा. महाराज इतना शुद्ध. तो महाराज का पहला सर्विस तो प्रभुपाद मेरे महाराज के बारे में सुना. महाराज का पहला सर्विस प्रभुपाद का रूम को साफ करना चाहिए ऐसा. सो उस दिन शुरू करके महाराज ने इतने दिन तक हम सबको हृदय शुद्धि कर रहा है. हमको भी ऐसा एक अवकाश मिला. एक बार 5-6 months बैक बिफोर द कोरोना सिचुएशन मैं दिल्ली से मैं बैंगलोर आ रहा था और सडनली मैं देख रहा है महाराज है उधर बैठा था और महाराज उठकर थोड़ा वॉक कर ऐसा करता था. मैं देखा, मेरे को आई डोंट नो, आई बिकेम वेरी suddenly seeing Maharaj there in that airport, I was very so I went running to him and I paid my obeisances. Maharaj मेरा देखा. Maharaj was very soft. He patted me in the back. That's something which Gunarao Prabhu was talking. लव मात्र साधु संग सर्व शुद्धि हो. अब मेरे को ये लव मात्र संग मिला उस समय महाराज के बाद साथ. बट वो एक लव मात्र मेरे को इतना प्योर किया महाराज ने, वाक्य से मैं नहीं बोलूंगा. सो सभी समय मैं देखूंगा महाराज मायापुर में ये फेस्टिवल्स में पुजारी सर्विस करेंगे. देखा तो हृदय में थोड़ा पेन होगा. इतना उम्र एज में महाराज 2 घंटे उठकर सर्विस कर रहे हैं. वो चामर भी बहुत हेवी हो सकता है. मैं देखे को इतना वेट लेकर महाराज करते 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 जा रहा है. सो इतना उम्र में इतना पेशेंस फॉलो करके हमको इतना शिक्षा दे रहे हैं महाराज. So it is such a big blessing that he is such an inspiration, and I don't see him different from my spiritual master, the Solna Jayapataka Maharaj. They are all Prabhupada's very favorite disciples, and so I am blessed that I also got an opportunity, and I beg at his lotus feet that he blesses me so that I can continue to serve my spiritual master and Maharaj himself in whatever way in their service to Srila Prabhupada. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. बहुत धन्यवाद प्रभु. I think गुणार्णव प्रभु वापस ज्वाइन हुए हैं. प्रभु your glorification. गुणार्णव. Sorry प्रभु, actually मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम से वो कट हो गया था. Yes, प्रभु. So yeah, so I was just telling about the Udupi. Yeah, I'll just conclude. Yeah. So Udupi Yatra. So that is where actually हम लोग मैं usually उधर दूसरा जगह में जैसे पुणे और बॉम्बे में महाराज का बहुत डिसाइपल्स है और उसको टाइम देना, ईच एंड एवरी डिवोटी को टाइम देना बहुत मुश्किल का काम है. एक्चुअली इट्स वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर ए स्पिरिचुअल मास्टर. इट मे बी एनी स्पिरिचुअल मास्टर, बट सिंस वो महाराज अपने जोन से बाहर आके उडुपी में ट्रीटमेंट जब ले रहे थे, महाराज वाज वेरी सिक द टाइम. तो फिर भी हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दिया बैंगलोर डिवोटीज को. हर बैंगलोर डिवोटीज को उसको मिलना था और he personally wanted every Bangalore devotee who is there, who is his disciple, wants to meet him. तो वो एक महाराज का इतना अच्छा वो था कि he gave us such an opportunity, so wherein we cannot forget that opportunity. तो सब devotees को अपने अपने जो भी उसको इच्छा था हार्ट में वो पूरा फुलफिल किया महाराज.
and especially after that, my wife was very serious. Now she's seriously chanting, praying for Maharaj health. Only now we came to know that he is not well, and so we felt very bad after hearing the news. But then मैं वैष्णव महाराज का और सब सीनियर डिवोटीज का जब हम लोग सुन रहे हैं कि we need to pray for Gopal Krishna Maharaj here, and we'll try to pray to him every day and for his long health, and thank you for giving such an opportunity for us to glorify Gopal Krishna Goswami Maharaj. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. थैंक यू गुरुनानक कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी का इस गुणगान करने के लिए। हरे कृष्णा। सो मैं मंगल नित्यानंद प्रभु जी से अनुरोध करूंगा कि वे महाराज जी का गुणगान करें। एंड जैसे कि एक वैष्णव के बारे में कहते हैं, एक साधु के लक्षण हैं कि वे सहिष्णु, कृपालु तथा सभी जीवों का सुहृद होते हैं। उनके कोई शत्रु नहीं होते हैं, वे शांत होते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं तथा उनकी सभी विशेषताएं दिव्य होती हैं। तो ऐसे ये सारी विशेषताएं हमारे गुरु महाराज में विद्यमान हैं। आइए मैं आगे अनुरोध करूंगा मंगल नित्यानंद प्रभु जी से कि वे जो है महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन करें, और उसके बाद में राधाकांत प्रभु जी और रसिका सखी माता जी वे कृपया तैयार रहें। सो मंगल नित्यानंद प्रभु जी। Yes, Prabhuji, you can start. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನನ್ನ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಅವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಅವರು ದೀರ್ಘವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 3 ವಿಷಯಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮಾಂಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇವೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸೇವೆನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯೆ, ಅವರ ಒಂದು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಮರೆತು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸರಳತೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಭಾವ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ನಮ್ಮಂತವ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಆತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸರಳತೆ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು
ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅವರ ಭಕ್ತಿ, ಅವರ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜನ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅವರಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ಆದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Thank you, Prabhuji, for your nice, wonderful glorification. भक्त हैं राधाकांत प्रभु जी. प्रभु जी आप हैं? So राधाकांत प्रभु जी नहीं दिख रहे हैं. We have Gopinath Pran Prabhu ji. So I'll request His Grace Gopinath Pran Prabhu ji from ICC Temple to glorify Guru Maharaj. Gopinath Pran Prabhu ji. Shri Gopinath Pran Das Prabhu ji, you can pin him. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. Yes, yes, प्रभु जी. राधापति प्रभु जी लाइन में. Gopinath Prandat Prabhu ji, can you hear me? Chaitanya Mohan Prabhu, Sankarshan Priyadas here. Can I call Gopinath Pran Prabhu? Yes, Prabhu ji. He's not there. I'm there. Gopinath Pranadas. You're able to hear me? Yes, Prabhu ji, we can hear you. Thank you for joining, Prabhu ji. So, Gopinath Prandas is a very active member of ICC Bangalore. And thanks for joining, Prabhu ji, to glorify Guru Maharaj. Over to you, Prabhu ji. Yeah. So thank you very much for this opportunity to glorify His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj on the occasion of the 76th Vyasa Pooja ceremony function. Thank you for giving me an opportunity. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Distarani Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai. So I don't have any qualification to glorify such a wonderful and a great Vaishnava in our parampara, but for my own purification and also so that we know more about Maharaj, we are discussing about his glories, and our respect, our love, our affection towards him increases by hearing more about a Vaishnava with such great qualities. So in fact, amongst this group, I have many of my friends here whom I could see their names. In fact, Sri Gaur Prabhu is one of my dearest and close friends from so many years, and we share a lot of personal feelings also. That kind of sweet devotees Maharaj has. So the qualities of Maharaj we can see from his disciples. That is one of the striking point. Then I would like to highlight about Maharaj's compassionate nature. So just like Lord Chaitanya, he appeared to distribute the holy name and uplift so many fallen conditioned souls. Similarly, Maharaj, following the footsteps of Srila Prabhupada, he
developed more than about 14 temples just in one city like Delhi alone. Why such an endeavor? Because he felt that we will be able to reach to many people. See, generally a businessman, he puts lot of branches, he expands his business for what? For earning money for himself, and he wants to increase the name of his company. But whereas His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, he did this so that many people will take benefit of Krishna consciousness, and that way they will really perfect their lives. So much of compassion. And from this, I get to know that in spite of our busy schedule or anything, we must be considerate to devotees, and we must give time to devotees, and we should really be understanding the value of association of devotees. So that much is important. In fact, all see, just with one temple we struggle so much sevas and so many activities happening. Then imagine about 14 temples just in one place alone, how much of energy, how much of time will be taken away. But in spite of that busy schedules and uh, tight engagements, he gives time for each and every disciple of his. I have heard, when I interact, I get to know that so much time he gives for all the devotees. So, how much more compassionate can one be in spite of his uh, busy schedule and all that? So, that is one learning for me, that however busy we are, whatever it is, whatever little bit we can do, we must do in the service of Lord Krishna, Srila Prabhupada. That pleases the Vaishnavas also in the Parampara. Then using opportunities in Krishna's service. So Maharaj has a knack of using every opportunity in Krishna's service. For example, the NVCC temple inauguration, opening of the temple in 2013. So that time he invited the president, Pranab Mukherjee, at that time to invite a temple. See, please note that this is in a town B kind of a city. It's not a metropolitan. And because Pranab Mukherjee has come for inauguration, there is lot of news, advertisement, and awareness, publication, and all that. So he knows that if I bring a person like this, it is not just about opening the temple, but many people will get to know, okay, there is a ISKCON temple here around, and people can take the advantage of visiting the temple and taking a lot of benefits. Similarly, for the book distribution also, what he did is on February 26, 2019, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Gita book, which weighed about 80 kgs, they said. So such a big event he made. One is to emphasize on the book distribution, and also to spread this news whole across the country. He requested Narendra Modi, and he has access to such uh, personalities, So he's using them, and that way they also get connected to ISKCON. They also admire ISKCON. They appreciate ISKCON. So that way the society of which was developed, or the birth given by Srila Prabhupada, is going wide and far, the name of ISKCON, and the kind of publicity they get by using these popular figures, popular people. That time the mileage you get is so wonderful. That way he uses all the opportunity in Krishna's service. So that is one learning for me, that every opportunity we get, we should think how best we can serve to Krishna, how best we can make utilization of these moments. That is the way we can do it. So there are innumerable qualities of him, and over the years and years, although Maharaj is
working so hard all the time. Every time you will see him smiling, enthusiastic, and happy with the devotees, like that only. So from where this energy comes, this enthusiasm comes, and this, wherever he came, even to ICC, he will he will mingle as if he knows these devotees. He has come before also, like that. He doesn't have to feel a different place. So everywhere he accommodates himself in every situation, every kind of moments. He is able to accommodate himself. That is the glory of Maharaj, and he is there everywhere. His presence can be felt everywhere. If you take any of the major functions, major activities happening in ISKCON, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj is being invited and is a part of that program. So that kind of importance, that kind of value is given for his contribution, his services, and the way he has conducted himself. So saying this, I would like to end my offerings, and I pray that may I get a drop of devotion from him and his disciples, so that I can practice Krishna conscious very nicely and be helpful to devotees, useful to devotees. Thank you very much for this opportunity once again given to me, and I beg all your blessings on this auspicious occasion of the Vyasa Puja, and please pray and bless for me to be perfect in life and practice Krishna consciousness very nicely. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you once again. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you, Gopinath Prabhuji, for your wonderful glorification to Gopal Krishna Goswami Maharaj ji. महाराज जी कहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति करना असंभव है, और जब तक कि हम नियमित रूप से पूर्ण श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सावधानी से जप न करें, और कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते थे कि आप ऐसा कार्य करिए कि आप भगवान का दर्शन करने न जाएं, बल्कि भगवान जो है आपको देखने के लिए आए। ऐसा कार्य करना चाहिए। महाराज जी के ऐसे विचार हैं जो प्रभुपाद जी हमेशा कोट करते थे। तो इसी के साथ हमारे बीच में है और एक ही कर्मनिष्ठ भक्त, हिज ग्रेस नरहरि चैतन्य प्रभु जी, जो इस्कॉन कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट हैं और अथक परिश्रम कर रहे हैं इस मंदिर के निर्माण के लिए। तो आइए हम लोग जो है हिज ग्रेस नरहरि चैतन्य प्रभु जी से महाराज जी का गुणगान ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग एंड वी वेलकम यू टू दिस ग्रुप। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। So we are all with you in prayers for Maharaj's health. Just now I got ICC from the Internet All India body the message. So everybody is praying. We will also pray. नरहरि प्रभु, सॉरी टू इंटरप्ट, आपका हिंदी बहुत अच्छा है, सो मैं आपसे विनती करता हूँ अगर आप हिंदी में बोले तो काफी भक्तों को समझ में आएगा। माफी चाह रहा हूँ आपको डिस्टर्ब करने के लिए। हिंदी, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं। If you can try, Prabhuji, that would be helpful. Else, just take a small. I'll go with the English. If you can, I will. Okay, we'll summarize. You can do it. Mm-hmm. Thank you. So we got the message. So we are all praying for it. So I have been with recently with Maharaj Association. I've been getting in a lot of managerial meetings, and also he visited ICC recently. Going back, we have some connection with Maharaj in Canada, Montreal, where I visit, and he also visits. He's the GBC there. So now my nephew is he's accepted Maharaj as a Shiksha Guru. So many times Maharaj interacts with him, and he asks me when he come to India, he says, "How is your nephew doing?" So you can see his compassion for everyone. It's on the global level. So when I was looking at how Prabhupada engaged people, devotees, according to their talent, Maharaj is also like that. Just like Sri Gopinath Prana explained how Maharaj takes every opportunity and makes it very pro-ISKCON oriented successful programs.
So looking at when Srila Prabhupada was anxious of book printing in India, Maharaj was there at that time. So during his first 2 years, Prabhupada would press Maharaj to bring out more and more books. So Prabhupada said, especially pleased with him. Prabhupada encouraged him. He said, now you can utilize your knowledge for marketing for Krishna's service, because Maharaj was an MBA student and he was employed in a very big multi organization. So in that sense, so Prabhupada knew his talent and engaged according to them. So you could see that Maharaj, after Prabhupada left in India, how vastly it is expanded, and he's been the chairman of the bureau for a long time, and he along with Jaipatak Maharaj. What is very encouraging to me is their own relationship among God brothers and their relation with their grandnephews, nephews. So this is something we have to learn, and how we can all be together. Many times I have seen that in a day, at least 3 to 4 times they exchange talks between Maharaj and Jaipatak Maharaj. So it's been happening. So recently, when I was presenting a congregational paper where congregation and the temples can integrate in management, things like that. So it was Maharaj who was the one who spoke, and he appreciated, and somewhere I got stuck for my presenting, but he came, he said, no, this can be done like that. So he was always there. He has been preaching all over, and a lot of congregation have, taking shelter of his lotus feet. You could see that when they see whether it is a full-time devotee or a congregation, anybody who is able to give something, they pick it up. And when he came to Bangalore also, even though I had doubt whether he will make it, but the very next day, then I'm going to come. I spent about 2 hours with him, and he said, I will try my best, and he came. When he came, he went around. First thing, he saw the project. He says, I can help you in these things. So you can see his magnanimity. They see that ISKCON is their fathers. So in that way, he said, I have two or three people. You please contact them. You can get these things done. So afterwards, while taking prasad, he said, this well-organized temple, he said. So his appreciating way of, encouraging people is beyond my comprehension. So what I have to take away from them is that their love for each other and love for Prabhupada is unique and not negotiable. In the same way, age does not matter. And I've seen Maharaj's commitment to his Mangal Arati. Nobody can match it. Anywhere he goes, he is there on the Mangal Arati. He'll be doing the puja. And later on, he will attend to. So past 2-3 years, I've been observing Maharaj. Many things are there to learn from him. The energy, the capacity to expand Srila Prabhupada's movement, and they own it. So that's what when he came to Bangalore, he saw, and I felt that it is his temple, the way he spoke. So they see anything which belongs to Prabhupada, it is their responsibility to take it forward. So it's a great opportunity for all of us in whatever capacity we are in to help this society grow. They have, Prabhupada planted the seed and they are growing this, it's become a big tree. Maharaj is a great asset for all of us, and especially in India. He's doing extraordinary preaching, and his capability of reaching out to all kinds of people is, I just can't imagine. And Palena Parichayate, that means you can see by his the work he has done. So it's a great blessing on all of you. You have taken shelter. For me, he is my uncle, and certainly is also my authority of expanding this movement. I have that responsibility. Some of you are his disciples who are great contributors in all kinds of services in ICC. I'm so obligated, and I'm also obligated to Maharaj. So I thank you, all of you, giving me an opportunity. The time is limited, but glories are unlimited. So you can go on, and I thank
Radhapati Prabhu, if you can shorten it and present it. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I have already instructed in the temple. They will be doing special puja for Maharaj's health, and we'll hope for the best. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thanks a lot for your wonderful clarification. So, Hare Krishna. प्रभु जी का जो Yes, Prabhuji. Radhapati Prabhuji. आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, Prabhuji. ठीक. सो हिज ग्रेस नरहरि चैतन्य प्रभु ने बताया कि अभी उन्हें आईसीसी उनको पता चला मैनेजमेंट के स्तर पे महाराज के तबीयत के विषय में, और अभी प्रभु जी याद करते हुए बता रहे थे कि किस तरह से कनाडा में प्रभु जी के एक भतीजे हैं मॉन्ट्रियल में, जो वहाँ पर महाराज के मतलब शिक्षा डिसाइपल हैं, और महाराज इतना अधिक ध्यान रखते हैं कि महाराज बेंगलोर भी जब मिलते हैं प्रभु जी से तो पूछते हैं कि आपका वो भांजा या सॉरी भतीजा अब कैसे है। तो ये चीज़ दर्शाती है कि इतने लोगों से मिलते हुए भी महाराज व्यक्तिगत रूप से सभी भक्तों का ध्यान रखने का अत्यधिक प्रयास करते हैं। और प्रभु जी ने यह भी बताया कि सामूहिक संकीर्तन विकास हेतु एक शोध पत्र जब प्रभु जी ने प्रबंधन समितियों को के समक्ष प्रस्तुत किया, तो उस समय पर एक जगह पर आकर प्रभु जी थोड़े से अटके, तो महाराज ने बहुत उत्साह देते हुए प्रभु जी को बताया कि हाँ, इसको ऐसे नहीं तो ऐसे भी किया जा सकता है, और प्रभु जी को उससे बहुत उत्साहवर्धन हुआ और काफ़ी बल मिला। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात प्रभु जी ये बता रहे थे कि उनमें प्रभुपाद के प्रति और अपने गुरु भाइयों के प्रति अखंड विश्वास है। और परम पूजनीय जयप्रताप स्वामी महाराज का उदाहरण देते हुए वो कह रहे थे कि कई बार ऐसा भी होता है कि ये दोनों गुरु भाई एक दूसरे से दिन में 3 से 4 बार भी बातें कर लेते हैं, और पूरे विश्व के लिए तो है ही, लेकिन भारत में इस्कॉन के लिए महाराज एक बहुत ही बड़ी शक्ति हैं और एक बहुत ही बड़ा एसेट हैं। मतलब तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि महाराज शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ हों और हमें उनका आशीर्वाद इसी तरह से प्राप्त होता रहे। सो आई होप नरहरि प्रभु Thank you very much. Hare Krishna. Chetan Mohan Prabhu, Vardha Krishna Prabhu is online, so he can glorify now. Oh yes. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, thank you for joining our group and taking your time to glorify Guru Maharaj. Hare Krishna Prabhu जी हमारे जो है कृष्ण नरसिंह गिरधारी टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं, और प्रभु जी बहुत ही अथक परिश्रम और अपना पूर्ण समय जो है श्रील प्रभुपाद जी के इस मिशन में दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे भक्त हैं। ओवर टू यू प्रभु जी। प्रभु जी, इफ यू कैन ग्लोरीफाई, अगर आप लोगों का अनुग्रह प्रभु जी की हिंदी में बोलें तो कृष्ण प्रभु जी आपसे अनुरोध है कि कृपया हिंदी में बोलिए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री श्री परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। मुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री दीननाथ माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। What language? हिंदी प्रभु जी। Oh really? जी। All local Bangalore people, no? नहीं प्रभु जी, लोग राजस्थान से भी जुड़े हैं, बाहर से भी जुड़े हैं, so they are preferring requesting for Hindi. If you can, प्रभु जी। Yeah, as long as nobody complains about my grammar, I will try speaking in Hindi. No, Prabhu ji, you are good in that, Prabhu ji.
I will speak the South Indian version of Hindi. You're most welcome, Prabhuji, please. Mukam karoti vachalam pangam langayate girim yatpatamaham vande Shri Gurum Deenataharinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyeshwaram. सबसे पहले मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि आज शाम को कुछ मैसेज आया और अगर सच में बताना चाहते सच मेरा ये दिल की बात सुनना चाहते हैं तो मैं पूरा डर गया। ये इतना डर तो काफी दिनों के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान का असीम कृपा है, नरसिंह देव का कृपा है और असंख्यात वैष्णव लोग, दुनिया भर के लोग अभी मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। और हमारा मंदिर में भी कल सुबह से मंगल आरती का समय में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का नाम से भी प्रार्थना करेंगे हम। ये अभी इस दुनिया का हालत देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ऐसे महान पुरुष का योगदान क्या है इस्कॉन में। कभी कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे महान पुरुष हमारे सामने थे क्या, और उनका परिचय हुआ, उनका सेवा करने का मौका मिला, उनका दिव्य बातों, दिव्य संदेशों को सुनने का मौका मिला। अगर हम अपना अपना जीवन में हम भाग्य की क्षण, सौभाग्य की क्षण गिनते रहेंगे तो सबसे ज्यादा भाग्य की क्षण वो होगा जब हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के चरण कमल में बैठ के उनका दिव्य संदेश सुनते रहेंगे। तो ये हमारे बेकार का जीवन का एक सुनहरा मौका है, सुनहरा समय है। नहीं तो ये बिल्कुल बेकार का जिंदगी, मैं तो मेरे बारे में तो कह सकता हूँ कि बेकार का जिंदगी जीत चुका हूँ। तो मुझे सिर्फ, चाहे वो भक्ति चारू महाराज हो, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज हो, लोकनाथ महाराज हो, राधानाथ स्वामी हो, गोपाल कृष्ण गोस्वामी हो या जपताक स्वामी हो, इन लोगों के चरण कमल में बैठ के उनके चरण कमलों का दर्शन करते और उनका दिव्य संदेश सुनना ही मैं समझता हूँ कि मेरा जिंदगी में मेरा अपना जिंदगी, जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मेरा अपना जिंदगी अमूल्य क्षण वो थे। पता नहीं क्यों मुझे बार बार बुला के परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज दो चार बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे। और आजकल में गोपाल कृष्ण महाराज के आज्ञा के अनुसार मुझे और एक सेवा मिला, मौका मिला उनका सेवा करने के लिए। हैदराबाद में मैं थोड़ा बहुत सेवा लिया और मुझे अभी भी याद है वो दो या 3 दिन जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज हैदराबाद में थे, मैं तो बहुत आश्चर्य हो गया। उनका वो जितना प्रयास किया, वहाँ 4 लोग, हम 4-5 लोग, एक आदमी एक अलग दिशा में देख रहा था, अलग सोच विचार थे, अलग विचारधारा थे, अलग इच्छा थे, अलग हम जितना अलग हो सकते उतना अलग थे। मैं चाहे वेदांत प्रभु हो, राधेश्याम प्रभु हो, सीताराम प्रभु, बट हम चारों को एक ही जगह बिठा के बस इनका चेहरा देख के, इनका बातों को सुन के हम शरण हो गए। मैं तो बस बोलना ही बंद कर दिया। मैं बोला आप आज्ञा कीजिए, जैसे आपका आज्ञा है मैं वैसे करूंगा, क्योंकि मैं आपको परेशानी देना नहीं चाहता हूँ। आप अभी जो कर रहे हैं, ये असंभव है। आप इस उम्र में
कोई दूसरा जीबीसी का जोन में आके आप बैठ के ये चैरिटी सर्विस है। ये आपका समस्या नहीं है, समस्या नहीं था, आपका जोन नहीं है, फिर भी आप आए हैं यहाँ बैठ के 3-4 दिन। इतना कॉम्प्लेक्स समस्या था वहाँ पे। आप एक अंतिम रूप, एक अंतिम क्या बोलते हैं, अंतिम निर्णय और समस्या को हल कर दिया आपने। और एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज मुझे बुला के बताए कि तुम जानते हो मैं किस लिए कर रहा हूँ। ये मैं मेरे खास मित्र जयप्रताप महाराज के प्रतिनिधि बन के ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जयप्रताप महाराज आ नहीं सकते हैं। इसलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनका दूत बन के, उनका दास बन के मैं आया हूँ। और ये मेरा सेवा है उनको। I have come here on behalf of Jayapataka Maharaj because he is not in a position to come. I just want to help him solve this problem, this embarrassing problem that is there in Hyderabad, as my service to him. मुझे तो बस बात नहीं निकला मेरे मुंह से। मैं यही सोचने लगा कि 50 साल से ज्यादा दोस्ती है इन दोनों का। एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे को कितना मानते हैं। मैं ये भी देख चुका हूँ, कभी-कभी दिल्ली में 1-2 बार गया था जब जयप्रताप महाराज ये ब्यूरो मीटिंग्स के लिए जाते थे। काफ़ी बीमार थे उस समय, और जयप्रताप महाराज जब मीटिंग में भाग लेना मुश्किल हो गया था उनको, तो जयप्रताप महाराज ने और मीटिंग का रूम से बाहर खड़े होके, मतलब बैठ के अपने व्हीलचेयर में गोपाल कृष्ण महाराज को बुलाया, और गोपाल कृष्ण महाराज का हाथ पकड़ के जब तक महाराज ने बोला कि आप समझ सकते हो कि मेरा क्या पोजीशन है। वो खूबसूरत छवि है, ब्यूटीफुल पिक्चर। आप समझ सकते हो कि मैं अभी मुझे तुरंत अस्पताल भी जाना है, तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं छुट्टी मांग रहा हूँ। आप तो चेयरमैन हो ब्यूरो का, तो आप मुझे अगर इजाज़त दे तो मैं चाहूँगा, अभी अस्पताल जाना है, डॉक्टर से मिलना है। तो गोपाल कृष्ण महाराज जयप्रताप महाराज को देख के कहा कि आप मेरा परमिशन क्यों ले रहे हो? आप सबसे प्रमुख सेवक हो प्रभुपाद का। कौन नहीं जानता है कि आपके बारे में, आपका सिंसियरिटी, आपका प्रमाण, आपका सेवा के बारे में। आप आपका स्वास्थ्य देख लो। आप अभी जो कर रहे हो, जितना सेवा आप कर रहे हो, कोई भी नहीं कर सकता है। और अभी भी आप मीटिंग्स के लिए आ रहे हो, अभी भी इतना परिश्रम कर रहे हो, अभी भी इस्कॉन के बारे में इतना सोच रहे हो। आप आपका स्वास्थ्य देख लीजिए। अगर कुछ बड़ा समस्या है तो मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। आप जाइए। दिल्ली में ये घटना हुआ, मुझे जहाँ तक मुझे याद है उसी टाइम में राधापति गोपीनाथ प्रभु भी थे। उसके बाद में ILBS निकल पड़े गुरु महाराज। तो इन दोनों का प्यार का संबंध ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं। तो मैंने ये भी देखा कि ये महान पुरुष, ये महात्मा लोग, जिसका चरण का दर्शन प्राप्त करने से हमारा जीवन में न जाने कितना पाप कम हो जाता है। तो ये महान पुरुष, ये दुनिया में एक एक वैष्णव के बारे में सोचते हैं, एक एक वैष्णव के बारे में। और जब एक बार गोपाल कृष्ण महाराज, पूर्व पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ये दक्षिण भारत आए थे, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने मुझे बताया था कि मैं कल चेन्नई जा रहा हूँ। उस समय में जब तक महाराज चेन्नई में थे, मैं वापस दिल्ली चेन्नई होके जाऊंगा, अपना गुरु महाराज से मिलके जाऊंगा। और पूछताछ करूंगा। और सब लोग चाहते हैं कि जयप्रताप महाराज लंबी उम्र तक इधर रहें। तो हम ये
बड़े बड़े वैष्णवों, महात्मा महावैष्णवों के बीच में इतना प्यार का संबंध देखते हैं। जैसे आजकल में परम पूज्य जब तक महाराज ने बताया कि मैं अभी तक यहाँ अभी अब ये इसी जगह पे मैं मेरा सेवा अभी जारी है, क्योंकि भक्ति चारू महाराज, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि जब मैं काफी सीरियस हो गया था, परम पूज्य जब भक्ति चारू महाराज ने मुझे आदेश दिया कि आप तो रह जाओ, आप तो बड़े भाई जैसे हैं हम सब का, तो कहीं नहीं जाएगा, आप यहाँ रह के सेवा करो और कई दिन सेवा करना आप। तो परम पूज्य जब तक महाराज ने बोला, he ordered me to stay, he ordered me to stay, that is why I am staying and continuing my service to Prabhupada. और गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में क्या कह सकते हैं, कोई मुझे समझ में नहीं आता है कि कहाँ शुरू करे कहाँ अंत करे। इसका तो गिन नहीं सकते हैं क्या क्या किया महाराज ने अपना जिंदगी में प्रभुपाद के लिए। इतना ही बोल सकते हैं कि क्या नहीं किया उसने श्रील प्रभुपाद के लिए। जहां भी महाराज पैर रखा वहां पे एक महाराज एक कल्प वृक्ष जैसे बन गया, कामधेनु कल्प वृक्ष जैसे। जहां भी महाराज गया वहां भक्तों से भर गया उस मंदिर, और इतना जल्दी प्रगति हुआ, इतने हजारों लाखों संख्या में भक्त लोग बने। और एक साल के बाद अगली साल ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का आंदोलन जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज इस्कॉन के अंदर चला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई नहीं है जो इतना बड़ी संख्या में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। तो एक बार जब मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज दिल्ली में मुलाकात हुआ, मैंने बताया महाराज को, आप तो बहुत आदरणीय है महाराज, हम क्या कह सकते हैं आपको देख के, आप इतने महान शिष्य है प्रभुपाद के। और मेरा गुरु का आज्ञा है कि मैं होगा तो बंगलोर में बहुत सारे मंदिर का निर्माण करूं या कोशिश करूं। तो मैं बोला, मैं हमेशा आपके बारे में ये सोचता हूँ कि दिल्ली में आप इतना मंदिर बना रहे हो, एक के बाद एक। तो उस समय में शायद 5 या 6 मंदिर थे। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज मुझे देख के कहा कि अभी 5 या 6 हैं, प्रभुपाद का आज्ञा था कि मैं कम से कम 10 मंदिर बनाऊं दिल्ली में, कम से कम 10 मंदिर बनाऊं। अभी मैं सुन रहा हूं कि दिल्ली में 15 से ज्यादा मंदिर हो गया, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन में, एनसीआर में। और ये इस्कॉन में दुनिया भर के लोगों में जितना भी इस्कॉन भक्त हैं, महाराज के बारे में अच्छे भाव, अच्छे ओपिनियन देने वाले ही मिलेंगे। I doubt if there is even one single soul in the whole of ISKCON who does not have a deep appreciation, love, surrender, feeling of surrender to the lotus feet of Gopal Krishna Maharaj. जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बार बार बोलता हूँ कि I am probably one of the biggest fans of Gopal Krishna Maharaj. हाँ, मुझे तो उनका सेवा करने का मौका ज्यादा नहीं मिला इस जन्म में, बट ये बहुत सिर्फ ये सोचना कि कहीं है गोपाल कृष्ण महाराज इस दुनिया में, कहीं है और तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं प्रभुपाद के लिए, कहीं प्रचार कर रहे हैं या कुछ मीटिंग कर रहे हैं, कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं क्या, या कुछ प्रोत्साहन दे रहे हैं, या कुछ ना कुछ कर रहे हैं कहीं पे। ये सिर्फ ये सोच ही हमारे लिए इतना विश्वास देता है कि चलो हम भी उसका आदरणीय मतलब व्यक्तित्व देख के कुछ ना कुछ सीखेंगे, ऐसे कुछ करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा जीवन का बहुत बड़ा प्रेरणा है, गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में सोचना बहुत बड़ा प्रेरणा देता है मुझे। और
और वो हम लोग मैनेजमेंट में हैं तो हम देख सकते हैं कि महाराज का प्रभाव क्या है इस्कॉन के मैनेजमेंट में। और आप शायद नहीं जानते हो कि जब भी महाराज हमारे मंदिर आए हैं भगवान नरसिंह देव के लिए, जब भी महाराज इस मंदिर में आए हैं भगवान नरसिंह देव के लिए 1,08,000 देके ही जाते हैं। अब मुझे मालूम नहीं जब भी इस मंदिर में पैर रखे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक साधारण भक्त, मेरे जैसे भक्त के लिए एक प्रोत्साहन देने के लिए महाराज ऐसे करते हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ महाराज और उनका सेवा। अरे मैं इतना तो निश्चित कह सकता हूँ कि सिर्फ महाराज के बारे में सोचने से ही हमारा दिल, हमारा व्यक्तित्व, हमारा प्रेरणा मिलेगा और शुद्ध हो जाएंगे। सिर्फ सोचने से भी शुद्ध हो जाएंगे, इसमें तो मुझे कुछ भी संशय नहीं है, थोड़ा भी संशय नहीं है। सिर्फ ध्यान करने से, गोपाल कृष्ण महाराज का नाम याद करने से भी शुद्ध हो जाएंगे आप। इतना Are other devotees able to hear Prabhuji? No, Prabhuji. नहीं प्रभुजी, नहीं आ रहा है। आई थिंक डिस्कनेक्ट। Let me say send him. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, इज बैक। मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसे मौका मिलते रहे और उनका चरण का दर्शन और उनका सेवा करने का मौका मिलते रहे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ बंगलौर में जितना भी गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं, इतने अच्छे आदरणीय सेवा कर रहे हैं, और उन लोगों को भी मैं आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज मुझे याद किया आपने और परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को याद करने का मौका दिया और उनके बारे में दो बात बोलने का मौका आपने दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सबके साथ मैं भी कंधे से कंधे जोड़ के मैं भी भगवान श्री कृष्ण से, गिरिधारी से प्रार्थना करूंगा कि महाराज और हमारे साथ बहुत 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 लंबी समय तक हमारे साथ रहें और हमें रास्ता दिखाएं प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा किस तरह किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So I want to thank Sri Gaur Prabhu and all other organizers for remembering me, such an insignificant devotee, and giving me a chance to glorify Gopal Krishna, His Holiness Gopal Krishna Maharaj. Thank you very much. Hare Krishna. Thanks a lot. You are one of the key pillars of Bangalore temples, so you are very valuable for us. Thank you for glorifying nicely to Guru Maharaj. So I would like to invite Rukmini Ranga Krishnadas Prabhuji, who is there online. So सुधीर चैतन्य प्रभु अभी ज्वाइन हुए हैं, आपकी सिर्फ जानकारी के लिए है। यस प्रभु जी। कौन? हिज ग्रेस सुधीर चैतन्य प्रभु। Oh, अच्छा, he is joined प्रभु जी। Okay. Yes. After Rukmini Ranga Prabhu ji, we can take him प्रभु जी। Yes, yes, please. Yes, प्रभु जी। Rukmini Ranga Prabhu ji। Yes, प्रभु। Yes, प्रभु जी। Can glorify. Thank you प्रभु जी। Thanks for joining. Yes. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Thank you, Chaitanya Mohan Prabhu, for giving me an opportunity to speak about His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. So recently, I'm getting the Paripashnena Sevya, the question and answers, the series. So what I am going to do is I'm going to read some of the things only, which was very inspired to me
I thought I'll just repeat that. These are the words of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. He mentions the cause of all problems is improper chanting, and the solution to all the problem is proper chanting. The next point he mentions is one of the problem is that you want to judge everything yourself. If you judge everything yourself, your mind will always cheat. Take help from an unmotivated, advanced devotee. The real meaning of the seva is to follow the teachings. Many times we will do Bapu seva, even dance in front of the Guru, but we won't follow the instructions. Then it has no value. Being professional means I do the things right way. Devotional means I do everything for Krishna's pleasure. Humility means I do everything for Krishna's pleasure, but I don't want credit for it. Why we get discouraged while doing the service? We get discouraged while doing the service when we don't get the respect, recognition, and facilities as we expect. That's the reason. There is no loss in serving in difficult conditions, but the benefits are higher. Krishna is ready to remove our shortcomings, but our problem is we ourselves are not ready for it. We ourselves are desiring name, fame, and prestige. Prabhupada says it doesn't matter how one dies. Sometimes devotees pass away in an accident. If you have record of chanting and following rules, then that acts as your eternal protector. This means that holy name is so powerful that if you have done it for years and not at the moment of death, you are still protected. The very fact that we are still chanting is a proof that material attractions have decreased. Why are you attending Bhagavatam classes? Because you have the taste for hearing. To think that material attraction is not ending despite chanting is wrong. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says that this disease of prestige is most deep rooted. It's deeper than desire for wealth and women. You can give up wealth and women, but to give up desire for prestige, Sanatana Goswami says, is very difficult. When we order online from Amazon, we have full faith that if a product is faulty, we can return it within a month. But when Krishna assures, Mam eva ye prapatante maya metam taranti te, we doubt. We think this may be true or this may not be true. We should have full faith that if I surrender, I chant my rounds, I keep my schedule, then Krishna will help. With this, I conclude my glorification about His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. These are his words. I thought it is to repeat. I got an opportunity. Thank you once again. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thanks for your wonderful glorification and the realization. Thanks for joining us, Prabhuji. So I would like to invite next Sudhir Chaitanya Prabhuji, who's already joined. So Sudhir Chaitanya Prabhuji, you can glorify Guru Maharaj Ji. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस हिंदी में ओके यस प्रभु जी, हिंदी में बोलना है. ये ऐसी बात है कि दिल्ली वालों को अंग्रेजी पसंद नहीं है और दक्षिण भारत को हिंदी पसंद नहीं है. प्रभु जी, आपको दोनों को मिश्रण करना है. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिनी. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिनी. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. So this today Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj के व्यास पूजा महोत्सव के अवसर पर आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम.
और आपने मुझे यहाँ पे कुछ कहने के लिए अवसर आपने दिए। जैसे सभी डिवोटी कहते हैं, मैं भी वही बात बोलूंगा कि व्यास पूजा के दिन गुरु becomes the listener, श्रोता नहीं, audience, and शिष्यस become the speakers, भोक्ता। तो एक दिन है साल में, बाकी सब दिन शिष्य जो है keeps taking instructions from Guru Maharaj. So ये जो दिन है शिष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वो अपने कमिटमेंट, डेडिकेशन और अपना जो what you call dedication to the movement, to the society, to Guru Maharaj's words, thoughts, deed पे स्मरण करना और उनके ऊपर ध्यान करना, किस तरह से पूर्ण करना है गुरु महाराज का जो उनका आदेश है। आदेश से और भी थोड़ा गहरा है उनका इच्छा जो है। तो इस तरह से शिष्यों का एक कर्तव्य बनता है गुरु के प्रति कि not only follow आदेश but also try to find out what is the desire of the spiritual master. मुझे याद है जयप्रकाश महाराज कहते थे कि श्रील तमल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के बारे में इतना गहराई से उनका संबंध था, अगर प्रभुपाद सिर्फ हाथ हिलाते थे बैठे बैठे अपने रूम में मायापुर में, सिर्फ हाथ हिलाना, तो तमल कृष्ण महाराज को मालूम पड़ता था कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं। So much intense there was this relationship गुरु और शिष्य के बीच में। ऐसा हाथ हिलाने का मतलब है वो खिड़की बंद करो। वो जो गहराई है गुरु और शिष्य के बीच में, that depth we have to imbibe। और मैं समझता हूँ कि गौड़ीय संप्रदाय जो है ये बहुत अच्छी तरह से हमें शिक्षा दी जाती है कि how intense should be our relationship in guru and disciple, and बाकी और अन्य जो रहते हैं गुरु भ्राता और विद स्पिरिचुअल अंकल्स के साथ किस तरह से हमें पे व्यवहार रखना चाहिए। मैं तो जब देखता हूँ जब श्रील गोपाल कृष्ण महाराज और जब मिलते हैं बाकी उनके गुरु भ्राता गुरु ब्रदर गॉड ब्रदर से मिलते हैं, there's so much love between them, so much affection। ये मैं समझता हूँ ये सेकेंड जनरेशन को जाना चाहिए। The second generation should imbibe that। तो इससे हमें पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद ने उनको किस तरह से सब कुछ दिखलाए हैं कि किस तरह से हमें रहना चाहिए इस वैष्णव सोसाइटी में। एंड स्पेसिफिकली जब श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के मैं जब बोलना चाहता हूँ, आई हैव बीन हियरिंग अबाउट हिम फ्रॉम द 1990s के जैसा, ही इज सो जेंटल बट फर्म। कुछ भी अगर बात कहते हैं बहुत आसानी से, बहुत नम्र से, बहुत सॉफ्ट नरमी से बोलते हैं, लेकिन जो बात बोलते हैं वो कड़क रहता है। So this is one thing I got to know about Gopal Krishna Maharaj, Srila Gopal Krishna Maharaj. He is very gentle but firm. जो भी कहते हैं ठान लेते हैं, बस यही सही होना है। मुझे मालूम है वो सभी any of those are management issues, भुवनेश्वर और कुछ ऐसे कुछ एक दो इशू थे। He was so gentle, but the way he pushed things, he was really, you can say tough, but very gently he has done it. And then other thing, मैं उनका ग्लोरिफिकेशन करना चाहता हूँ, उनका साधना। I tell you, मैं तो दंग रह गया एक बार जब तिरुपति में थे, अनेक साल 6-8 साल पहले हम तिरुपति में मीटिंग में मिले थे। फिर मीटिंग के बाद जो सुबह से शाम तक मीटिंग चलता है, फिर शाम को बैठे थे एक बार महाराज, हम, दयाराम प्रभु और कुछ वो लीगल के लिए। वो मीटिंग जो चला रात को 1:30 बजे 2 बजे तक,
महाराज वहीं पे थे. And others were telling, Maharaj, आप जाके rest ले सकते हैं. No, no, I want to be here. I want to listen what all is happening. तो मैं भी वहां बैठा था, discussing legal issues. So जब 2 बजे, I think 1:30-2 बजे we broke up we went back to our rooms. मैं मन में ठान लिया, छोड़ो कल क्या, आज मंगलारती होने वाला नहीं है. मैं आज रेस्ट लेने वाला हूँ, मंगलारती हरे कृष्णा. फिर भी जब रूम में थे तो शंख बजा. उस टाइम छोटा मंदिर था पीछे की तरफ तिरुपति का, राधा गोविंद जी छोटे मंदिर में थे. तो वहां पे शंख बजा और हुलुध्वनि हुआ. हुलुध्वनि तो नहीं, जब कीर्तन शुरू हुआ तो मेरा नींद जाग गया. मैं सोचा एटलीस्ट कम से कम दर्शन करके तो आऊं मैं. तो मैं ऐसे ही नाइट ड्रेस में चुपके चुपके जाके दर्शन करके जब मैं उठा, मैं देखता हूँ महाराज वहां पे आरती कर रहे हैं. I was really astonished and I also felt a little ashamed. ऐसे Gopal Krishna Maharaj ji, he is there right with us till 2 a.m. and now he's right there in the altar doing arti to Sri Radha Govind ji. This is something I tell you which is very rarely found in anywhere else. And then recently मैं उनको मिला था तिरुपति टेम्पल अगेन, जब वो इंटरिम जीवीसी मीटिंग हो रहा था, मेरा कुछ बात बोलना था. तो महाराज बड़े प्यार से मुझे सुने, बड़े प्यार से समझाए. लेकिन समझाते समझाते उन्होंने जो बात कही, बस मैं समझ गया, he wants this to happen, this is the way it should be. But the way he regarded me, the way he made me sit and talk, he never made me feel like uncomfortable or something. So these qualities, when we get those vibrations, then those vibrations really affect us. I really want to imbibe some of those qualities of Maharaj. It's so very important for us. और अभी तो पहले 1-2 महीने जब ये लॉकडाउन शुरू हुए तो कुछ डिवोटीज बोले महाराज से, आप फार्म हाउस पे शिफ्ट हो जाइए, यहाँ पे मंदिर में रहना थोड़ा असुविधा हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस वायरस. बट महाराज बोले नहीं, मुझे इधर ही रहना है, मंदिर में रहना है, डिवोटीज के साथ रहना है. सो इफ यू सी हिज अचीवमेंट्स नेक्स्ट, व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट उन्होंने अचीव किए हैं दिल्ली में. मोर देन half a dozen temples, centers. Starting so many centers in a big place like Delhi is not a joke. And this is something we all have to learn. And Sabhi Mandir mein, the way there is a kind of a united stand, united opinion, and he's monitoring and trying to have an umbilical connection between all the centers, ये हमें सीखना चाहिए. बाकी जगह sometimes we see एक ही शहर में अगर 3-4 मंदिर हो तो communication becomes quite difficult. But so nicely is managing all of that in Delhi especially. Other places maybe there he's having other centers, but I'm saying in a big city like Delhi. So this is something I really appreciate about Maharaj. He's very dedicated, strong, and hardly compromises. And traveling को तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो समझ सकता हूँ नारद मुनि कभी कभी थोड़ा शर्माएंगे कि जिस तरह से इस्कॉन सन्यासी जो है ट्रैवलिंग करते हैं तो उनका रिकॉर्ड भी थोड़ा कम लगेगा, नारद मुनि जिस तरह से ट्रैवलिंग करते हैं. So the way our Maharajas, they are traveling and preaching, I sometimes सोचता हूँ कि next generation क्या ले सकते हैं इनसे, माने what they can really learn from the first generation. I think ऐसा समय है कि first generation should stay there for another 10, 15, 20 years for the next generation to be ready. I'm not trying to belittle the second generation, but still there are so many nice things to learn from the first generation. ये मेरी कहने की बात है. पहला जनरेशन से हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है. So इस तरह से they're all like big pillars for ISKCON, Srila Gopal Krishna Maharaj, and I really pray to Lord Jagannath that he gets well soon,
And again, he inspires many more devotees on whatever medium. And also see that he leads the ISKCON India Yatra along with his god brothers. Kyunki they represent, stamba, a pillar for Vedic culture, for Krishna consciousness, for preaching. जब एक बार आए थे शेषादिपुरम मंदिर, तो मैराथन से पहले आए थे, तो करीब कार्तिक के टाइम आई थिंक, तो ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछा कि इस बार मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या लक्ष्य है बेंगलोर का। तो आई थिंक हमने कुछ फ्यू थाउजेंड्स कुछ बताए भगवद गीता मैराथन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उन्होंने बहुत ही नम्र से और वेरी हम्बली सेड, बट दिल्ली वी आर एबल टू डू सो फ्यू लैक्स, सो व्हाई नॉट बैंगलोर, बैंगलोर में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा प्रयास करो, थोड़ा कोशिश करो, हो सकता है, like that, He did not belittle us, but at the same time he was encouraging us that come on, you should also do what other cities are able to do, big cities. So unka lecture hai, even kirtan also he does nice. He really takes the kirtan to a real high ecstasy high. So I think our first generation, we need them more and more now, so that we can imbibe their qualities and their principles, और उनका जिस तरह से उनका जो communication है with the rest of the other devotees, हमें बहुत कुछ सीखना है उनसे. So we hope and pray that Prabhupada allows us to have his disciples for more number of years in ISKCON, so that the second generation can really learn something good and imbibe that in the future. So this is my prayer to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Please, we need your blessings, we need your mercy, we need your guidance. Please keep the devotees under your shelter, and please see that you please keep giving good guidance, and see that our society is going on the right track and not get deviated with some other issues. And we are wholly solely dependent to see that we get all the nourishment from you, so that we can retain our Krishna consciousness and in some small way pass it on to the next generation. So this is my humble prayer to Maharaj, and thank you Prabhu, Maharaj, whoever is there on this forum, for allowing me to speak a few words. I remain his humble servitor, even life after life, Sudhir Chaitanya Das. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for your wonderful glorification and your realization along with Maharaj ji. So now मैं अभी जो है राधापति प्रभु जी से अनुरोध करूंगा कि वे कुछ महाराज जी का गुणगान कर बोले, और उसके बाद में राधापति प्रभु जी के बाद में दिनेश प्रभु जी और वेणुधर प्रभु जी, आप कृपया तैयार रहिए इनके बाद में महाराज जी का गुणगान करने के लिए, ग्लोरिफिकेशन करने के लिए. सो ओवर टू यू राधापति प्रभु जी. ओके, हरे कृष्णा. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत सत्यनामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशाशदेश तारिणी. I have personally met, not personal interaction, but I personally have taken darshan of the Maharaj, I think in Mayapur and also in Bangalore. So basically, I see his contribution, like it is very nice in terms of, especially in the book distribution, which he has expanded in New Delhi, and also he has invited our Prime Minister Narendra Modi also in inaugurating the vast temple of Radha Parsasti
and Sri Sri Gauranitai and Sri Sri Sitaram Lakshman Hanuman. And I had a chance last year, I had visited Delhi. I stayed in the temple for 2 days and looking at the temple very nicely, the deities were taken care. And also had to been to the museum where you have a very big Bhagavad Gita, which was been inaugurated by the Prime Minister, very well taken care. And especially he has very much much concern about the expansion of the projects. Like he has expanded the projects in Kurukshetra, in Vrindavan, and lot of projects like you can consider. I was just going through a few days back the TOP, in the TOP website somewhere in February. His Holiness Gopal Krishna Maharaj and Radhanath Maharaj and my spiritual master His Holiness Jaipatak Maharaj were all three discussing about the project going forward, and a lot of contributions and a lot of help suggestions where he gives in the TOP as well. I like to quickly take some moment just directly reading his quotes, because it is to my heart, especially in preaching. And he has done a lot of good preachings, Bhakti Riksha in New Delhi, especially in terms of Hindi congregation, and also in the book distribution. I'll read some few quotes just to inspire us directly from His Holiness Gopal Krishna Maharaj. He says, we go on book distribution, book marathon for 2 or 3 or 4 times a year. But Maya, the illusionary energy, is on marathon 365 days a year. Don't forget that Krishna is in your heart, and in the heart of the person you are approaching. When Krishna sees you are making honest effort to please him, he inspires the other person to reciprocate. I think that's what we have experienced when we were doing the book distribution. This Sankirtan is a very purifying activity. It purifies even a devotee, because it forces the devotee to dump out his arrogance and pride and adopt a very humble posture, and humility is always an asset in spiritual life. Everyone from top to bottom should take part in this Sankirtana process. This is the highest priority. We should all take part. If one is a Grahatsa, if there are children, then organize a nursery. So one mother can take care of all the children and the other mothers can go out. Please determine and go on distributing Prabhupada books. These books are the only hope for the suffering humanity. Prabhupada told us that these books will be read for the next 10,000 years. All problems of the world can be solved if we take shelter of the message in these books. Though the medium of books distribution, Prabhupada preaching and walking up so many conditioned souls. So looking at this, I'm very inspired by Maharaj preaching efforts in Delhi and many other parts of the places. And looking at his humble, gentle, many of the devotees have spoken to him and spoken about him. And this is what I think Maharaj has been guided by Srila Prabhupada, and the same thing is being followed down the line. And so we should also get inspired by him to do the preaching activities. And earlier also one devotee spoke about the importance of chanting by Maharaj. The main source of the problems are because of the improper chanting. So these are all we should able to meditate upon Maharaj. And thank you very much, without taking much time. Thank you very much for senior devotees here, giving me a chance to purifying myself in glorifying Maharaj.
and going through his some of the very good task or mission which he has performed. Thank you very much. Hare Krishna. And I would like to pray for Maharaj good health, continue, so that he further inspires all of us for continue coming years. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you राधापति प्रभु जी. Thanks for your nice glorification. बहुत ही अच्छा आपने सुंदर रूप से महाराज के गुणों को प्रस्तुत किया. तो हम आगे बढ़ते हैं. हमारे अगले भक्त हैं जो ग्लोरीफाई करेंगे दिनेश प्रभु जी, और उनके बाद में वेणुधर प्रभु जी. दिनेश प्रभु जी आप हैं? हाँ, हरे कृष्णा. Yes, हरे कृष्णा प्रभु जी. मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल गोस्वामी. So it was the year 2014 when I was there in NITK studying. मैं 2014 NITK में पढ़ाई कर रहा था. तो उस टाइम पे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वहाँ पर आए थे मणिपाल में. तो हर साल वहाँ पर आते हैं उडुपी में एक्चुअली में महाराज हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए. तो वहाँ पर एक सेंटर है भजन कुटीर करके. तो महाराज वहाँ पर आए थे लेक्चर देने के लिए, और हमारा भी सौभाग्य था कि हम महाराज जी के सानिध्य में वहाँ पे बैठ के लेक्चर सुने. तो लेक्चर सुनने के बाद में मेरा भी इच्छा था कि महाराज को हम भी हमारे वॉइस में बुलाएं. तो मैं महाराज के पास गया. महाराज अलग से दूसरे रूम में जाके प्रसाद ले रहे थे. तो जैसे महाराज जा रहे थे मैं भी पीछे पीछे जा रहा था. एक्चुअली मैं उस टाइम पे नया ही था इस्कॉन में, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था. तो उनके पर्सनल सर्वेंट ने मुझे रोक लिया. बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि मुझे महाराज जी से बात करना है. तो महाराज जी ने बोला, वो पर्सनल सर्वेंट ने बोला कि नहीं बाद में आना. तो फिर महाराज देखे पीछे मुड़ के कि कोई मिलना चाहता है. तो महाराज ने बोला नहीं उसको आने दो आने दो. तो मैं महाराज के पास गया. तो वहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और वो सब रखे हुए थे. महाराज ऐसे ऊपर में चेयर पे बैठ गए और मैं नीचे में बैठ गया. और भी 2-3 डिवोटीज आए, वो भक्ति सेंटर के डिवोटीज वहाँ पर. तो मैं महाराज से बोला कि महाराज, तो महाराज पूछे कि आपका इच्छा क्या है. तो मैंने कहा कि महाराज हमारा इच्छा है कि हम लाइफ लॉन्ग प्रभुपाद जी का सेवा करें और भक्ति अच्छे से करें. तो बोले इधर किस लिए आए हो? मैंने कहा कि महाराज जी मैं आपको अपने सेंटर में बुलाने के लिए आया हूँ. तो बोल रहे कि प्रभुपाद जी है ना आपके सेंटर में, और राधेश्याम जी आते हैं ना आपके सेंटर में, तो आप हमको वहाँ पे बुला के परेशान क्यों करना चाहते हैं? तो मैं थोड़ा डर गया कि महाराज क्या हुआ. तो महाराज बोले कि एक्चुअली मेरा हेल्थ थोड़ा खराब है, तो आप एक काम कीजिए, परेशान मत होइए, आप सब भक्तों को इधर ही बुला लीजिए. तो मैं तो पूरा एकदम सरप्राइज हो गया कि महाराज मतलब क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि डर गया था थोड़ा. तो महाराज जी ने बोला कि डरो मत, आप अपने भक्तों को इधर बुला लीजिए, हम उनके साथ में यहाँ पर लेक्चर करेंगे. तो दूसरे दिन हमने सब डिवोटीज को बुलाया उधर से NITK से, और 1 hour 20 minutes तक महाराज जी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चला एक्चुअली में. तो बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे थे महाराज जी से. तो महाराज जी ने एक इंस्ट्रक्शन दिया हमको उस टाइम पे कि एक्चुअली में यूथ में जब जवान रहते हैं उस टाइम पे माइंड है वो बहुत फ्लिकर करता है. क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो डिसाइड करना बहुत आसानी से सही नहीं है. जब हम सही चीज को फॉलो करने लग जाते हैं तो उधर डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन जब सेंस ग्रेटिफिकेशन का बाहरी आता है तो आदमी पूरा उधर चला जाता है. इसलिए ध्यानपूर्वक जप करना आप लोगों को. अगर आप ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो कभी भी आपको कुछ भी समस्या नहीं आएगी आपकी भक्ति में. तो एक वो इंस्ट्रक्शन था. फिर दूसरा महाराज ने बताया कि प्रभुपाद जी का बुक है. अगर मैं एक्चुअली में वो बात पहले भी सुना था महाराज जी के बारे में कि प्रभुपाद महाराज ने बोला कि अगर कोई 2 घंटे रोजाना प्रभुपाद जी का बुक का स्टडी करेगा तो माया कैन नॉट टच हिम, माया देवी उसको टच नहीं कर सकती. तो ऐसे महाराज जी का इंस्ट्रक्शन था. और वहाँ पे जब एक्चुअली में महाराज जी थे हमारे साथ, तो उन्होंने बोला कि देखो प्रभुपाद की बुक्स में बहुत सारा नेक्टर और बहुत सारा मोती और हीरा और जो चूड़ामणि ये सब छुपा है, आप लोगों को बस खोजना है इसको. तो महाराज जी ने तुरंत हमारे सामने भगवत गीता खोला और उसमें से पढ़ने लग गए एक्चुअली में. और वो मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु वो श्लोक के बारे में पढ़ रहे थे. तो महाराज जी बता रहे थे कि ये भगवत गीता के एसेंस है. कृष्ण हमको बता रहे हैं कि हमको क्या करना है उनके सानिध्य में वापस जाने के लिए, और कैसे हम एक्चुअली में भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं. कि मन मना भव मत भक्तो, ये कठिन है हमारे लिए परिश्रम करना है. अगर ये परिश्रम के तुल्य नहीं होता तो भगवान हमको बोलते नहीं ऐसा करने के लिए.
क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है करने के लिए, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपनी तरफ से यत्न करो इसको प्रैक्टिस करने का। अगर आप इसका यत्न करेंगे तो आपकी जिंदगी में आप सक्सेसफुल रहेंगे। और फिर उसके बाद में एक दूसरा वीडियो देख रहा था मैं महाराज जी का, तो उसमें महाराज जी बता रहे थे कि वो पूना में एक्चुअल में राधेश्याम प्रभु और वो सब टेम्पल बनाने का सोच रहे थे। तो उसमें एक वीडियो में आता है, तो महाराज बता रहे हैं उसमें कि पुणे इज ए बिग सिटी, पुणे एक बड़ा सिटी है, वहां पर हमको बड़ा मंदिर रखना चाहिए। तो महाराज जी का एक्चुअली में डिजायर था, तो वहां पर एक बड़ा मंदिर आया इस्कॉन में, एनवीसीसी। और जैसे प्रभु जी पहले बता भी रहे थे कि प्रणब मुखर्जी को महाराज जी ने इनवाइट किया वहां पर, और बड़ा प्रोग्राम हुआ। और आज एक्चुअली में पूना बहुत बड़ा सेंटर बन के आ रहा है, क्योंकि महाराज जी वहां पर देख रेख कर रहे हैं। और हम हर साल जब भी जाते हैं, विजिट करते हैं, तब देखने को मिलता है कि कैसे महाराज जी की इंस्पिरेशन से वहां पे कितना कुछ हो रहा है एक्चुअली में। तो मैं इतने ही शब्दों में विराम देना चाहूँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी का हेल्थ बहुत जल्दी से जल्दी सुधरे और बहुत लंबे समय तक हमें उनका सानिध्य मिले। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक दिनेश प्रभु जी आपके बगल में हैं, सो अगर दिनेश प्रभु जी भी बोलना चाहते हैं तो। यस दिनेश प्रभु जी, शॉर्ट तो थोड़ा सा क्विक रखिए। और इसके बाद में ज्योतिश्वर प्रभु जी को अनुरोध करूंगा कि वे बोले। तो दिनेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मैं वेणुधर दास, मैं बहुत आभारी हूँ सारे भक्तों का। सारे वरिष्ठ भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरी कोई निजी योग्यता है नहीं महाराज जी के बारे में कुछ बोलने के लिए। फिर भी मैं संक्षेप में कुछ प्रयास करूंगा महाराज जी के कुछ विषय में कुछ बोलने का। तो व्यक्तिगत रूप से मेरा कभी महाराज जी के साथ संबंध हुआ नहीं, लेकिन महाराज जी के कुछ शिष्यों से मैं मिला जो हमारे यहाँ सेंटर में रहते थे, और उनको देखकर और उनसे महाराज जी के बारे में सुनकर और महाराज जी के कथाओं को सुनकर मुझे कुछ जानने को मिला महाराज जी के विषय में। तो मैं संक्षेप में 2 या 3 बातें जो मुझे याद आती हैं, जो उनके शिष्यों ने हमें बताया, उसके बारे में बोलना चाहूंगा। तो एक बात जो बार बार सारे भक्त भी यहाँ पर जो आए हुए थे, सारे वरिष्ठ वैष्णव, जो बता रहे थे कि महाराज जी कैसे दृढ़ता से भक्ति करते हैं। मंगल आरती हर दिन बिना किसी भी, इस नियम को इतनी दृढ़ता से उन्होंने अपने जीवन भर में पालन किया। तो यह बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं अपने जीवन में भी इसको उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरह से महाराज, हम किसी भी मंदिर में जाते थे, जब भी हम कार्तिक में जाएंगे, वृंदावन जाते थे या मायापुर में कभी रहते थे, तो जब भी अगर महाराज वहां उस स्थान पर रहते हैं तो सुबह में मंगल आरती के समय हम उन्हें ऑल्टर पर देखते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा करते हुए देखते थे। तो यह एक बहुत बड़ा उत्साह हम लोगों को मिला कि किस तरह से एक आचार्य यहाँ आकर अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं, खासकर मुझे सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें भक्ति करना चाहिए। तो दृढ़ता पूर्वक वो भक्ति का आचरण हमें सिखाए। दूसरा, महाराज जी का एक सरल भाव, एक भक्त मुझे बता रहे थे कि किस तरह से एक बार महाराज जी भुवनेश्वर में थे, और महाराज जी सुबह सुबह अपने विग्रह का सेवा करते हैं। तो वो बता रहे थे कि महाराज जी विग्रह का सेवा कर लिए थे, श्रृंगार कर लिए और प्रसाद अर्पित कर, भोग अर्पित कर दिए थे भगवान को। तो उसके बाद महाराज जी गेट खोलकर देख रहे थे कि कोई बाहर है क्या। तो जो बाहर के भक्त, एक ब्रह्मचारी वहां पे थे, वो बोलने लगे, वो देखे महाराज जी गेट खोल के बाहर देख रहे हैं, तो वो बोले कि महाराज जी कुछ सेवा है क्या। तो वो उनको अंदर बुलाए, और फिर वो भक्त बता रहे थे कि महाराज जी कितने प्रेम से जो विग्रह का सेवा किए थे, उनका श्रृंगार किए थे, उनको बुलाए और बोले उनको कि हमारे विग्रह का दर्शन कीजिए, और प्रसाद दिए उनको बोले कि आप इनका परिक्रमा कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। तो किस तरह से वो भक्त बता रहे थे कि एक उच्च कोटि का वैष्णव और आचार्य होते हुए भी एक सरल भाव से भगवान की सेवा कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि कई भक्त आकर हमारे विग्रह का दर्शन करें। तो यह 2 बात जो संक्षेप में मैं कहा। अनंत गुण है महाराज श्री के, मैं योग्य नहीं हूँ उन गुणों को बोलने के लिए भी, लेकिन फिर भी भक्त लोगों ने हमें यह सौभाग्य दिया, इसलिए मैं कुछ बोलने का प्रयत्न किया। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद
प्रभु जी, आप ऐसे ही प्रोत्साहन लेते रहिए और इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा. थैंक्स फॉर रियलाइजेशन. तो मैं अनुरोध करूंगा हिज ग्रेस ज्योतिश्वर प्रभु जी से कि वे महाराज जी का गुणगान करें. हिज ग्रेस ज्योतिश्वर प्रभु जी. Thank you very much, Prabhuji, for giving the opportunity. So actually, many of the things His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai. So many of the qualities, many devotees would have told, but still for my own purification, I want to share some of my thoughts. So Maharaj has ocean of great qualities. So some of the things I want to say for my own purification. So I was hearing earlier, Maharaj, when he was young, he was working in Coca-Cola company as marketing person. Would you keep the mic away, little bit away, because that sound is coming. Yeah, I think it's okay. Yes, so Maharaj was at very young age itself. Maharaj met Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada, because he was working earlier as marketing field. So Prabhupada interested the marketing of this book distribution. Prabhupada is interested. So in India, Maharaj was distributing lot of books. Even now, whenever we talk about book distribution, Maharaj's inspiration is everybody all devotees knows how great importance. Always Delhi temple, no, they do great seva and book distribution. So much of inspiration he gives, and also he goes to Pune very frequently and inspires the Pune devotees also. See, he doesn't feel only his temple devotees, so he has that well-wishing nature. He encourages all the devotees, all the Prabhupada disciples, I mean all Prabhupada's followers. Maharaj encourages without any discrimination. So we feel for constructing one temple itself is so tough. But Maharaj, if you see so many temples in Nairobi also, Maharaj has constructed one very big temple, it seems. In Delhi, if you see everywhere, all streets almost we can see so many temples. Maharaj has so much of plan, at least 10 temples it is there. Then Bombay also, so many temples. So that shows how much devotion he has for his Guru, Srila Prabhupada. Then Maharaj's quality, one of the important thing is he always sees the good in others. See, many times that is very difficult to follow. So many times we get frustrated and we yell at the other devotees. But we have always seen he is very, very mild, and he is very, very sensitive. And he knows all his disciples. I mean, very closely he talks with them, and he is very, very sensitive. And the love and care he shares. So all of them say how nicely he takes care and talks about their personal life, how they are progressing like that. So much of time and energy he spends for all devotees. And Maharaj has contact with all big politicians, Narendra Modi and the earlier president, like that. He has very good, wonderful relationship with them, and he meets them and he uses for distributing, spreading this Krishna conscious movement. That is, and this biggest Bhagavad Gita book, that is amazing work of Maharaj's initiative. That is really a wonder. And he, at this age also, though Maharaj is quite old, but if you see he does lot of hard work, and Abhishek Mandal he does very sincerely, attending Mangalarti and other things. It's very, very inspiring. And I was hearing about Radhesham Prabhu glorifying Maharaj last year, this one. So in that, Radhesham Prabhu was telling so many things. In that, after giving that, Maharaj was so humble and so much detached. He was just telling this Radhesham Prabhu is a great youth preacher. And even Maharaj was telling, Radhesham Prabhu his conscious level is much elevated than many of the sannyasis, like that. So how much great Vaishnava quality Maharaj is, exhibiting. So he is able to glorify even juniors also. So that much Maharaj is very much pure Vaishnava. And he also tells, Radhesham Prabhu also was telling, Maharaj, he used to go for this Pune temple. It seems there he has met one Grahastha devotee. And that Grahastha devotee Maharaj has met this many times. And through that Grahastha devotee, that the Maharaj spoke to that Grahastha devotee and made him to give 1.5 crore, it seems. So within Maharaj visits at times, but within that short visit itself, he made that newcomer to make 1.5 crore this one donation to the temple. So such a great power Maharaj has. So with this, there are so many qualities, but since time is very less, with this I wish to
close. I pray to lotus feet at the lotus feet of Maharaj that he gives more shiksha for all of us, so that all of us can progress nicely in Krishna consciousness. Thank you very much, devotees. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Prabhuji, for your wonderful realization and your glorification to Guru Maharaj ji. मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारे आदिदेव प्रभु जी और संगिनी माता जी, अगर वे हैं, आदिदेव प्रभु जी और संगिनी माता जी. I think they are not there. So can I request Rohini Dulal Prabhu ji? Rohini Dulal Prabhu ji, आप हैं? Not there, Prabhu. Okay. So Braj Krishna Prabhu ji. Braj Krishna Prabhu ji हैं? Not there. It's not there, Prabhu. Okay, then nobody is there. So Prabhu ji, any one more person who would like to glorify, who's there in the group? Because whatever list I had, वो लिस्ट में से सबका नाम मैंने बुला दिया है. और यदि कोई बोलना चाहते हैं, so मैं अदरवाइज मैं रेवती लीला प्रभु से बोलूंगा कि वे महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन करें. रेवती लीला प्रभु, ओवर टू यू प्रभु जी. वैभव कृष्ण गुरु जी को फोन करो. हाँ प्रभु जी, आप शुरू करिए ग्लोरिफिकेशन, फिर आप उन्हें फोन करिए. प्रभु जी आप शुरू कीजिए. वैभव कृष्ण जी को फोन करके बताओ. जय श्री श्री राधा. रेवती लीला प्रभु. प्रभु जी वैभव कृष्ण प्रभु जी को कॉल. Okay, so और कोई devotees who is there in the present in the group, कोई और बोलना चाहते हैं महाराज जी के बारे में, उनका गुणगान करना चाहते हैं? हम अगले 5 मिनट में इस सेशन को एंड करेंगे और इसके बाद में एक आरती होगी. महाराज जी की आरती करके आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे. So हरे कृष्ण प्रभु. Yes प्रभु जी. If any केशव chat box who wants to glorify. वो तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रभु जी, हिंदी बात नहीं कर सकता हूँ. ओके प्रभु जी. कैन यू ट्रांसलेट? करेंगे. हरे कृष्ण. यस प्रभु जी. आप ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रभु? नहीं, आप बोलिए प्रभु. You can speak. At the end I will summarize. नहीं प्रभु, वो चैट में मैं डाल दिया था कैसे वो लॉर्ड कृष्णा केम विथ हिज डेमिगॉड्स एंड डिवोटीज फॉर earthly pastimes. लॉर्ड चैतन्य भी आया था उसका एसोसिएट के साथ. शीला प्रभुपाद भी आया था विथ स्पेसिफिक सोल्जर्स, बिकॉज वो सेनापति भक्त था ना. लॉर्ड चैतन्य वाला ये सेनापति भक्त है प्रभुपाद जी. तो वो भी अपना सोल्जर के साथ आया था. उसमें वो सोल्जर्स में एक सोल्जर इज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज. ठीक है, वो दिस इज व्हाट आई वांट टू ग्लोरीफाई. उसका कंपैशन, आई थिंक आई पुट सम मोर पॉइंट्स इन द चैट बॉक्स. उसका कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी एंड नॉट टेकिंग प्राइडलेसनेस बहुत इंस्पिरेशन हो गया. Then many devotees have spoken already about his attending Mangalati, means strict sadhana, his confidence and the faith on sadhana. See, more than the action, uska mood हम देखना. Uska mood is how he was having confidence on the Prabhupada's words and commitments. Uska sadhana में कितना he was having a what do you say, faith and following strictly. वो हम सीखना. We should have faith in our Guru and Guru's words and follow very strictly. This inspiration I'm getting from Gopal Krishna Maharaj. Okay, one small incident I want to narrate, Prabhuji. मैं तो गुड़गांव बार जाने वाला था पहले, वो 10 साल पहले. एक डिवोटी था, एक्चुअली ही वाज कांग्रीगेशन डिवोटी. बाद में वो फुल टाइम टेंपल मंदिर में ज्वाइन किया. उसका कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, वो महाराज ट्राई टू सॉल्व इट बट नहीं हुआ था. देन ही बिकेम सेपरेटेड एंड फुल टाइम डिवोटी बन गया इस्कॉन दिल्ली मंदिर में. बाद में ही वाज प्रीचिंग ना थ्रू आउट दैट जोन. वो बोला था एक बार महाराज के साथ
कुछ प्रीचिंग के लिए बाहर गया था, एक महाराज एक वॉशरूम में स्मोक किया था। वो टाइम दिल्ली में बहुत कोल्ड है, आप लोग मालूम है दिल्ली इज हाउ कोल्ड ना, इस विंटर टाइम में वेरी वेरी कोल्ड। देन महाराज जस्ट कमेंटेड सिंस अभी थोड़ा गर्म पानी है तो अच्छा लगेगा। इज अ रियल इंसिडेंट, लेट अस हैव अ फुल फेथ। गर्म पानी मिला तो अच्छा लगेगा ऐसे सोच के वो वॉशरूम गया था। देन वो महाराज बाहर आने के बाद दूसरा उसका डिसाइपल भी बाहर वो वॉशरूम गया था, वो टैप में गर्म पानी आया था, कोई गीजर नहीं है वो वॉशरूम में, कुछ नहीं है, बट इट वाज so he was narrating it. One who is having full faith, you should trust, because these are all the souls. They are not from this material planet. His Holiness Jayapatha Maharaj, His Holiness Gopal Krishna Maharaj, and all the sannyasi disciples assisting Srila Prabhupada, वो ये भौतिक दुनिया से नहीं है, they are directly from spiritual planets. Actually, they are sacrificing so much of the comforts to just to preach us. This should be our inspiration, and glorify them, and really remember and follow the instructions. This is what I want to glorify, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी, दिस वाज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। बहुत अच्छे से आपने महाराज जी का गुणगान किया, उनका ग्लोरिफिकेशन किया। मैं अब रेवती लीला प्रभु जी से बोलूंगा कि वे महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन करें, और इसके बाद में हम लोग आरती के लिए जाएंगे। रेवती लीला प्रभु जी। प्रभु जी गुरु पूजा करें फिर? हाँ ठीक है, आई थिंक वो नहीं है। और एक भक्त का आया है अनंत वासुदेव दास। अनंत वासुदेव दास प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्लीज, यू कैन स्टार्ट द ग्लोरिफिकेशन। दिस इज द लास्ट। अनंत वासुदेव प्रभु, 2 minutes. हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपाद साहित्य में प्रकार से वित्तीय प्रचारम कृतवान साधु भगवत पदाय ते नमः। सो मैं महाराज जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि महाराज जी कि जैसा हमें गुरु मिले हैं, जिसके हम शरण में आए हैं, और महाराज की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ें, और प्रभुपाद जी का जो मिशन है उसको हम निरंतर मतलब सेवा भाव से करते रहें। और महाराज का ही मतलब ये होता है कि महाराज कहीं पे भी जब मिलते हैं तो 2 मिनट का टाइम, कितना भी क्राउड रहे, कुछ भी रहे, जैसे हम परिक्रमा करने जाते हैं, मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, या मुंबई में महाराज जी मतलब जब भी आते हैं तो जरूर पूछते हैं कि आप कैसे हो, आपकी जप्पा चैंटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और भगवान की सेवा कर रहे हो कि नहीं से हो, मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो। तो महाराज विशेषकर 2 मिनट का टाइम निकाल के भक्तों को मतलब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि हम महाराज जी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे, और यही प्रार्थना करेंगे हमारे श्री राधा मदन भगवान से कि महाराज का हेल्थ और उनकी लाइफ आगे रहे, और उनका मार्गदर्शन हमें मिलते रहे, और उनकी कृपा हमारे ऊपर बने रहे। श्री भगवत पाद की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत वासुदेव प्रभु जी। अनंत वासुदेव प्रभु जी पहले यहाँ बैंगलोर में थे और अब मुंबई शिफ्ट हो गए, तो उनका रिक्वेस्ट आया था। थैंक्स फॉर ग्लोरिफिकेशन। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री गौर प्रभु विल स्टार्ट विद द आरती प्रभु जी, और आरती के बाद में हम लोग फिर एक माला जप भी करेंगे महाराज के अच्छी जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए। रेवती लीला प्रभु आप कुछ बोलना चाहेंगे? रेवती लीला प्रभु, आपका बीच में कनेक्शन नहीं आ रहा। यस प्रभु जी, प्लीज प्लीज। रेवती लीला प्रभु जी महाराज जी का गुणगान करेंगे। बहुत ही कर्मठ भक्त हैं, हमेशा हर सेवा में आगे रहते हैं। ओवर टू यू रेवती लीला प्रभु जी, मैं और अधिक समय नहीं लेता हूँ।
नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपाद शिखाई संप्रदाय कृष्ण। हरे कृष्णा। तो थोड़ा बहुत बताता हूँ मैं इतना अपना प्यूरिफिकेशन के लिए मैं सोचता थोड़ा। तो महाराज जी के बारे में जितना बोले उतना कम है। महाराज जी का सबसे अच्छा गुण हम देखने जाएं, हम एक शुरुआत करते हैं एक बीज का, उसका फल लगते तक जब बीज कितना संघर्ष, बीज की जब उसकी ख्याति बढ़ेगी, जब वो अपना जीवन पूरा संघर्ष में अपना बलिदान देगा, तभी उसकी ख्याति होगी। जैसे बीज तब सोचता है कि मैं इसका बिना बलिदान दे के मुझे ख्याति बढ़ानी है, तो नहीं बढ़ेगी। तो जैसे बीज को हम देखते हैं, धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात को सब कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ता है। तो अभी हम लोग प्रभुपाद जी के मूवमेंट में देखते हैं कि सबसे बड़ा हम क्या क्या देखते हैं। प्रभुपाद जी जब बता रहे थे कि मतलब अंतिम समय में कि हम लोग 64 माला फिर आसान से कर सकते हैं, और भक्ति भी कि जीवन के अंदर जितने भी सबसे बड़े अड़चन बताते हैं कि मतलब कोऑपरेशन। तो महाराज जी के तो कोऑपरेशन देखते हैं, और जब महाराज जी का कोऑपरेशन हर प्रभुपाद जी जितने भी शिष्य हैं और सब लोगों के साथ में, तो मैं मतलब उनका जीवन में आदर्श बताते हैं कि जैसे भक्ति का मतलब बोलते हैं कि भक्ति के जीवन में बोलते हैं कि भक्ति और प्रेम, तो महाराज के अंदर पूरा वो भरा हुआ है। हम आगे आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखा जाता है कि भक्ति सम्मिलित होती है सरलता से। महाराज के जीवन हर समय हर क्षण हर जो भी जो भी कोई गुजरता है, जो भी आता है, देखते हैं तो पूरा बारीकी से वो मतलब ऐसा महसूस कराता है वो सर कि इतनी हमेशा हम आज का दिन देख महाराज के बारे में हमने सुना कि महाराज अच्छा नहीं, तो हम लोग क्या एकदम गड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, ऐसा हम सोचते हैं मतलब क्या होगा महाराज जी का। महाराज जी का जीवन में देखा, मैं थोड़ा दिन के साथ में था मैं पूर्ति यात्रा में, तो महाराज जी का उनका अभी फोन आया कि मतलब वृंदावन यात्रा से कोई गोविंद जा रहे थे, मतलब उस रोड में एक्सीडेंट हो गया। फिर थोड़ी बाद में फोन आ रहा है कि उस वक्त तो उधर ये हो गया, उस वक्त को हार्ट अटैक हो गया, उस वक्त को ये चाहिए, उस वक्त को मतलब संन्यास लेना, मतलब उस वक्त को भी पूजा ट्रेनिंग लेना है। तो मतलब जब 3-4 दिन महाराज के साथ में था, तो कभी खुशी गम इतने सारे मतलब सुबह हम देखते तो महाराज मतलब थोड़ी किसी बात ने बताया कि समस्या का एक ही हल है, अटेंटिव जप, मतलब ध्यानपूर्वक हम जप करें। और हम समस्या इसलिए है कि हम लोग ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं। तो महाराज के जीवन में देख रहे हैं कि मतलब कितनी भी बड़ी समस्या आने दो, कितना भी बड़ा कुछ भी वेदना आने, तो उसको इतना बारीकी से सबको फोन कर रहे हैं। उसको एक्सीडेंट हुआ तो उन भक्तों को मतलब जब उनको वहाँ पे दिल्ली से समझो डॉक्टर को भेजना, गाड़ी भेजना, हर चीज में तो उनको हर जगह से उसको गेस्ट व्यवस्था किया गया, उस फैमिली को उसको व्यवस्था किया गया, हर चीज की बारीकी से मतलब देखा जाता है, इतना बारीकी से वो देखते हैं। तो उससे ये समझते हैं, सीखते हैं कि भक्ति में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो महाराज से सीखने बोले, महाराज जी की जो सरलता है वो बहुत ही सराहनीय है। मतलब एक प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रशंसनीय और सेनापति हैं। तो हम भी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि भक्ति का जो फल पक्के जब हाथ में आता तो वही है कि सरलता। तो महाराज के इतने गुण होने के बाद, इतनी अपूर्व गुणवत्ता होते हुए भी अटेंटिव जप के बारे में वो बार बार ही बोलते हैं, अटेंटिव जप होना है, रीडिंग अच्छे से होना है, बूझे से होना है, मतलब मिलजुल के रहो। हम जो भी कोई भक्त जाते पूछता है कि महाराज जी हम लोग आपको कैसे प्रसन्न कर सकें, आपकी कैसे सेवा कर सकें, तो महाराज जी यही बोलते हैं कि बार बार कि मतलब आप अच्छे से जप करें, मंगल आरती अच्छे से करें, रीडिंग करें, प्रभुपाद जी का बुक डिस्कशन करें। तो मतलब इतना उतना वो उसको भी बताने की इतना सरलता से बताएं। तो हम लोग महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ये सरलता हमारे में भी आए, सब भक्तों में आए। सब वो पूरे हम देखते हैं कि मतलब
सरलता हमारे को ढूंढनी पड़ती है। तो महाराज जी की सरलता मतलब ऐसे आम हर जगह मिलती, मतलब इतनी सराहनीय महाराज जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री गौर प्रभु जी, श्री गौर प्रभु जी, विल यू ग्लोरीफाई? श्री गौर प्रभु जी, आप बोलेंगे महाराज जी के लिए? हरे कृष्ण। श्री गौर प्रभु। Prabhuji, in the interest of time, let's go ahead with Guru Puja, like because we have to also chant and do. Okay, okay. So Abhinav Prabhuji, please pin Nikunjarani Mataji for the camera. So, and we'll start with the आरती। तो प्रभु जी हम आरती शुरू कर देते हैं गुरु महाराज की, ठीक है? Yes, Prabhu. प्राप्तस्य कल्याण गुणानवश्च वन्दे गुरु श्री चरणं वन्दे गुरु
एक आरती Vedanta Swami Iti Namine Saraswati Deve Gauravani
వాయిస్ ఆన్ లో ನೀವು వీడియో ఆన్ చేయమన్నారు నేను వీడియో ఆన్ చేయాలి వాయిస్ కేకు మీకు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు Goswami Maharaj ki jai. जय विष्णुपाद रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु हम आपके घर आ रहे हैं। गिरी गोवर्धन की जय, दुर्गा माई की जय, दुर्गा माई की जय, देवी की जय, सत्यनारायण की जय। अमल पुराण श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता की जय, की जय। व्यास पूजा महामहोत्सव की जय, परम पूज्य गोपाल गोस्वामी महाराज की जय। गौर प्रेम श्री हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम लोग महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए एक नरसिंह आरती भी कर लेते हैं साथ में, और विल हैव जस्ट नरसिंह आरती। अगर कोई गाना चाहता है तो देन दे कैन जस्ट सिंग। गो अहेड। नरसिंह आरती गाते हैं प्रभु जी, और उसके बाद में इस कार्यक्रम का, आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो आइए हम लोग महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए नरसिंह आरती करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद
नरसिंहदेव भगवान की जय। मुख्य शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। गोस्वामी महाराज की जय। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर प्रभु जी उन सबका वो सोगरा चैतन्य मोहन प्रभु जी, अभिनव प्रभु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज से प्रार्थना करें आप सबको खूब मिले, आशीर्वाद मिले, खूब आगे बढ़े आप। महाराज जी के लिए जो है जप आरंभ करने वाले हैं और उस जप का अनाउंसमेंट इस ग्रुप में कर दिया जाएगा। जैसे कि आज बैंगलोर के सभी मंदिर जो है महाराज जी के लिए स्पेशल पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो हम लोग जो है कल से इस एक स्पेशल जप सिर्फ महाराज जी जल्दी स्वास्थ्य लाभ के लिए जल्दी हम लोग शुरू करेंगे कल से ही। और उसकी अनाउंसमेंट टाइमिंग और ग्रुप की लिंक जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा। कृपया आप उसमें जरूर जुड़िए ताकि जल्द से जल्द हमारे गुरु महाराज का स्वास्थ्य लाभ हो, वे ठीक हो और हमें उनका जो है आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे। यही हम लोगों की मनोकामना है। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। श्री गौर प्रभु, आपको कुछ अनाउंस करना है या रेवती लीला प्रभु जी, विक्रम चैतन्य प्रभु, जिन लोगों के सहयोग से आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री गौर प्रभु प्लीज आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बस सबको थैंक्स कहना चाहेंगे एंड वी विल all of you please pray intensely and sincerely, and as Chaitanya Mohan Prabhu shared that we are planning tomorrow onwards we will do some extra chanting to Guru Maharaj, so we will keep you all posted on the रेवती लीला प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? यस प्रभु जी सुन रहे हैं। प्रभु जी लाइन में बोलिए प्रभु जी आप। रेवती लीला प्रभु आपको बोल रहे हैं। आपकी आवाज वीक आ रहा है, तो जी प्रभु जी आप कुछ कह रहे हैं? प्रभु जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनादि जगन्नाथ प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज कुछ बोलिए। नहीं, हम आप सबके आभारी हैं कि इस महाराज की गुणगान कर पाए। मैं थोड़ा बीच में आईडीसी के लिए निकल गया था तो सुन नहीं पाया हूँ, पर
पर सब भक्त लोग एक साथ जुड़ के महाराज एक शुद्ध वैष्णव के गुणगान किए, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। एंड स्पेशल टाइम महाराज की यह है कि हम लोगों को मिल अभी हिज पास टाइम कि हम सब मिल के उनके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। तो विल फॉर दी ग्रुप मैसेज में अपना मैं श्योर हूँ कि सारे मंदिर वो करेंगे, पर अपनी तरफ से आज से तेजराज प्रभु आज किए, कल दूसरे मंदिर भी सब लोग सब जगह महाराज के लिए पूजा किया जाएगा ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, प्रेरित करते रहे। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे वेरी नाइस केक प्रभु जी। प्रभु जी आप बार बार केक की तरफ ना दिखाएं। राधापति गोपीनाथ प्रभु जी रिपीट कर दो हिंदी में, एक बार अब हिंदी में पढ़ दो इसे, इंग्लिश में भी। राधापति गोपीनाथ प्रभु जी हैं। ये अनादि प्रभु आप ड्रामा कराइए, मेरे साथ ड्रामा से दिखाइए। ये घर है ये। मैं पढ़ूं अभिनव प्रभु? प्लीज प्रभु जी। Do I just need the best doctor, hospital or medicine to return to healthy life? No, I need my disciples to glorify Krishna more by chanting their rounds attentively. So demonstrate to Krishna that you want to please him. Give me my medicine by becoming good devotees. The medicine that will cure me is with all of you, not with doctors. Please take my request seriously. So let us all chant properly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. प्रभु जी एक बार हिंदी में भी आप इसे कर सकते हो क्या ट्रांसलेट? हाँ, क्या मुझे सबसे बेहतर डॉक्टर, हॉस्पिटल या मेडिसिन की जरूरत है? नहीं, मुझे चाहत है कि मेरे शिष्य कृष्ण की गुणगान करे अपनी जाप अच्छी तरह से करके। तो अगर आप कृष्णा को बताना चाहते हो कि आप मुझे खुश करना चाहते हो, तो मुझे मेरी औषधि दीजिए, अच्छे भक्त बन के मेरी औषधि दीजिए। यही औषधि मुझे ठीक करेगी, डॉक्टर्स नहीं। मेरे ये निवेदन को सीरियसली लें। हरे कृष्णा। थैंक यू अभिनव प्रभु, दैट वाज अ वेरी। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। प्रभु जी और चक्रमोहन प्रभु जी को थोड़ा बहुत मेहनत किया, प्रभु जी बहुत मेहनत करा सहायता करने के लिए, प्रोग्राम के लिए आपने गाइड किया। अभिनव प्रभु जी सामने आइए थोड़ा। हाँ अभिनव प्रभु जी, मैंने कहा था ग्लोरीफाई करिए, लेकिन अभिनव प्रभु जी आप सबको तो दिखा रहे, आप अपने आप को छुपा रहे। हरि बोल। जय जय अभिनव प्रभु जी। थैंक यू फॉर वंडरफुल सेवा प्रभु जी, बहुत अच्छी सेवा आपने की। Always the man behind. Powerful force. Krishna, Guru Gauranga has mercy on you. हरे जी। अभिनव प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण तो बोलते हैं, उन्होंने अटूट प्रयास कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आप माला करेंगे क्या? बेहतर है, वो हमेशा सबके लिए हरे कृष्ण बोलते हैं, जो लोग आए हैं और जो लोग नहीं आ रहे, आत्मा है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो वीर कृष्ण प्रभु जी हमारे हमेशा प्रार्थना करते हैं कि जो लोग आए और जो नहीं आए, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा नमो नमः। श्यामला माता रिक्वेस्ट करें, अभी लोग की पाला करेंगे तो पूछे। हरि बोल। प्रभु जी अभी लोग हैं, हमने नरसिंह श्यामला माता जी ने एक महीने का रिक्वेस्ट किया है। मैं पूछ रही हूँ प्रभु जी कि क्या अभी हम करने वाले हैं, कल से शुरू करेंगे और कल शायद 7 से 7:30 बजे डेली 7 से 7:30 माता जी कल से एक मीटिंग कर हम कल से प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे आज। यस यस ठीक है, ओके ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।